So Mm-hmm. so yeah, Okay. So this, yeah. So I uh-huh. yeah. Go ahead, Madhura. नहीं बोलिए बोलिए, you were telling something. Yeah. So as it's my childhood memories, this is the thing that I can recall that we didn't have knowledge, no one हाँ to speak about it. It was considered as taboo. So हाँ. yeah, these are the things. Okay, okay, fine. Anyone else? Till that time you can think. I'll tell you something about my story. So it all started जब हमारे स्कूल में I was lucky कि I was been educated because they had kept this lecture रखा था कि periods क्या होते हैं, pads क्या होते हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं, where do you get this thing and how we have to hide it in our bag, पेपर में रखना है, न्यूज़पेपर में रखना है, so many things. So when I got my menses, I was like थोड़ा chill थी मैं because I knew few things. But then I realized so many girls don't know about all these things and they were just so scared. Like my neighbor, she was just so scared कि वो स्कूल जाना उसने बंद कर दिया, वो लेक्चर्स नहीं अटेंड करती थी एंड कुछ भी जैसे नीचे खेलना भी हो देन हर मदर नेवर यूज्ड टू अलाउ हर टू प्ले एट दैट टाइम. सो व्हाई सो मच? So once I started reading about all these things, I came to know कि so many problems a girl goes through. It could be mental health. She might get disturbed because of all these things. She might feel ये क्या हो रहा है. The other things is everyone should notice कि क्या क्या problems हो सकती है उस दौरान, चाहे वो वजाइना से रिलेटेड हो या हमारे यूरेथ्रा से रिलेटेड हो. ओके, कि यूट्रस में भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है. एंड द अदर प्रॉब्लम्स दैट गर्ल्स में फेस इज लाइक पीएमएस. सो हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट एंड हर्ड ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम? एनीवन हैव हर्ड? एक हाथ रेस हुआ था. ओके, सो बेसिकली ये अंजलि जी. ओके ओके फाइन. ओके हाँ, सो दिस पीएमएस इज व्हाट, ये एक दो हफ्ते पहले ही ये सेंसेशन आना स्टार्ट हो जाता है कि यू फील ब्लोटिंग, स्वेलिंग और हेडेक हो जाता है एंड देन एब्डोमेन पेन होता है, बैक पेन होता है. सो व्हेन आई हैड दिस पीएमएस प्रॉब्लम बट आई डिडंट न्यू दैट वाज अ प्रॉब्लम. एक्चुअली आई थॉट इट इज अ इंडिकेशन, मुझे इंडिकेशन मिल रहा है कि मेरे पीरियड्स आने वाले हैं. आई रियली यूज्ड टू थिंक दैट वे. बट वंस आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट दिस वाज अ नॉर्मल एट ऑल. ओके, तो ये कम कैसे होता है? सो आई जस्ट वांट टू रिलेट दिस कि जो भी प्रॉब्लम्स नोट डाउन की गई है, पीएमएस हो या फिर बहुत बार पीरियड्स आता है एक महीने में, या फिर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है यानी हर 2 घंटे में आपको पैड चेंज करने पड़ते हैं, या फिर यू फील योर पीरियड्स आर सो पेनफुल यू हैव टू स्किप योर वर्क ऑल्सो. So all these things isn't normal. But once you relate all these things to some wellness programs या फिर exercise कर लेते हो, that definitely helps. So what helped me was exercising, but I didn't knew which specific exercise I have to do. But somehow again I went through few things and I came to know कि किस तरह से abdomen के exercise होते हैं, belly floor muscles के exercise होते हैं, and all these things can be handled. So जो भी जो problems हमको दिख रही है menstruation related things, these all are can be handled easily with the exercises. Okay, because इसमें क्या होता है, hormonal imbalance होता है, so exercises helps to balance all these things. Okay, we'll go to the next slide. Okay, PCOD and PCOS. So have you heard about this PCOD and PCOS? How many of you have heard about this? Almost everyone I can say. And do you think ये दोनों चीजें सेम है या डिफरेंट है? What is your opinion? आपको क्या लगता है, दोनों चीजें सेम है और they are different? You can unmute and tell me. Are these same PCOD, PCOS? No clue. Huh? What? No clue, I think. No clue. Okay, okay, fine. And any other? और कोई जिन्हें लगता है सेम है, Yes, एटलीस्ट इतना कर लो. no, there's a difference between and There's a PCOS. difference. Okay. Okay. Yeah. Same. Okay. Fine. Okay. So it sounds same, but actually वो different है. इसमें बस बेसिक कंसेप्ट यही होता है कि पीसीओडी, नॉर्मल साइकिल्स क्या होते हैं, जैसे ओवरीज है, एग रिलीज होता है जो काफी मैच्योर होता है, फर्टिलाइज्ड होता है वो एग. ओके, दिस इज नॉर्मल थिंग. बट पीसीओडी जिसको डिटेक्ट होता है उनमें क्या हो जाता है कि वो जो एग है ना वो इमेच्योर ही रिलीज होता है ओवरीज में से. इट इज रिलीज बट इट इज पार्शियली मैच्योर्ड. ओके, एंड दैट इज व्हाट डेवलप्स इनटू सिस्ट. सिस्ट यानी से बोल सकते हैं बबल है जिसमें लिक्विड है.
ओके, इट रिमेन्स देयर, इसीलिए उसको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा जाता है। इस नेम डिजीज कहा जाता है, उसके नेम में ही है, वो सिस्ट बन जाता है। एंड दिस इज हाउ यू लैंड अप हैविंग पीसीओडी। तो इसमें चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी इज देयर, बट इफ यू आर डायग्नोस्ड विद पीसीओएस, उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज यही सिस्ट ना ओवरीज में बन जाते हैं, तो एग तो रिलीज ही नहीं हो पाता, इट रिमेन्स देयर इटसेल्फ। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। एंड रही बात हॉर्मोन्स की, तो अगर बहुत फ्रैंकली कहूँ, तो एक जो हार्मोन यहाँ लिखा है एंड्रोजन हार्मोन, वो हमारे बॉडी में ना बहुत लिमिटेड होना चाहिए टू बी ऑन सेफर साइड। बट पीसीओडी पीसीओएस में यही हार्मोन ना बढ़ता जाता है, एंड वंस यू डायग्नोज विद दैट यू लैंड अप हैविंग दिस प्रॉब्लम। तो इसका क्योर यही है। ये सारे जो सिम्टम्स हम देख रहे हैं, इरेगुलर पीरियड्स होना, वजन बढ़ना, मूड चेंजेस, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, स्लीप प्रॉब्लम होता है, यानी ब्रीदिंग में भी whenever you are sleeping you find little breathlessness, वो एक प्रॉब्लम, एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये सारे जब हम सिम्टम्स देखते हैं, दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि समथिंग इज रॉन्ग एंड यू नीड टू डिटेक्ट इट एट दैट टाइम ओनली, विद रेदर देन लेट होना। लेट होने के बाद क्या हो जाता है, उसी को सॉल्व करने के लिए और वक्त लग जाता है। ओके, so just be aware about all these symptoms and problems of this menstrual cycles. Okay, towards, okay, now we'll go ahead. So now we are going ahead with the other stage. So young age वाला हमने देख लिया. Now there's a new problem in new age. So we'll see childbearing years में क्या हो जाता है. So whenever we are trying to conceive and हम pregnant हो जाते हो, so many changes are happening in the body, correct? So everyone here changes हो गए body में. So what changes did you experience during this time? एक तो जैसे वजन बढ़ जाना, फिर स्पाइन का अलाइनमेंट बदल जाता है. What other things did you experience during this childbearing years? And still you feel कि ये प्रॉब्लम नहीं होता अगर मैं एक्सरसाइज करती तो, ऐसा भी किसी का थॉट है? You could have exercised at that time. Anyone? Yes, yes, yes. Hmm. Pratibha ji. Yeah. Yes. What do you think? Just some anxiousness is going on that time and fear also, hostile, Hmm. how it happened, and the new experience. So naturally, little bit nervous. That is Oh, the okay. Good. And anyone else? Just एक ही जन को एक्सपीरियंस हुआ? Where are others? Reshma ji is smiling. I can see her face. Others also, you can switch on the camera so I can see you. I'm not able to see everyone actually. Ma'am, one of my Uh, nightmares I would like to discuss about my Hmm. pregnancy is it was like I got gestational diabetes. So हाँ. gestational diabetes, yeah, detected while I was pregnant. So I had Hmm. to deal with lots of things which I was not aware. औरतों को पता ही नहीं होता है कि डायबिटीज जैसी कोई चीज और जेस्टेशनल डायबिटीज जैसी कोई चीज आपको 7th या 8th मंथ में हो सकती है. And they just Correct. keep on eating unhealthy diet just because they want कि बेबी का हेल्थ बहुत अच्छा हो womb में. तो they keep on eating everything and anything. तो ये सारी Yes. चीजों का नॉलेज ही नहीं है. तो एंड देयर आर लाइक डॉक्टर्स बताते थे कि देयर आर 70 to 80% मदर्स जिनको एंड में Hmm. ये जेस्टेशनल डायबिटीज का इशू हो जाता है एंड दे आर नॉट Correct. अवेयर अबाउट इट. या Yes. So it could be a better if you were already aware. Then आपको या पता एग्जैक्टली. चलता था what things you could have done. Correct. Yeah, So I would have Anjali ji actually, has I was an written. active हाँ. person, obviously, Hmm. but obviously अगर मुझे पता होता तो मैं उस लेवल का स्ट्रेस नहीं लेती. There were lots of things. डॉक्टर ने कहा Hmm. कि बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा बिकॉज Oh. आपका शुगर लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है. एट द एंड एवरीथिंग वाज फाइन बट आई हैड टू कंट्रोल. एक अलग ही लेवल का मुझे सारी चीजों पे कंट्रोल करना पड़ा. उसके बाद मैंने प्रॉपर एक्सरसाइज, डाइट, स्ट्रेस लेवल अपना मेंटेन किया. सो Hmm. वही चीज अगर पहले मुझे नॉलेज होता, आज मैं लोगों को ये चीजों के बारे में नॉलेज देती हूँ कि पहले Hmm. से कि इतना ये चीजें मत खाओ, ऑयली ज्यादा मत खाओ, अपना डाइट क्लीन डाइट रखो. सो ऑल ऑफ दैट नाउ सिंस आई Oh. नो, तो मैं ये चीज पास ऑन करती हूँ. Yes, beautifully she said actually. It was all true. उनका experience काफी अच्छा था. And now she is making this awareness. This is the
Good thing. Okay, so we just go to the next slide where we can just see few of the conditions. हाँ, so these are the conditions. So एक तो प्री एंड पोस्ट प्रेगनेंसी के दौरान यदि आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हो तो आपका एनर्जी बूस्ट होता है। सेकेंडली, आपको मूड अच्छा रहता है। एंड द थिंग इज वॉट एवर चेंजेस आर हैपनिंग जो प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं, यू कैन ऑलवेज मेक देम स्ट्रांग। जो भी मसल भी वीक हो जाता है, पेल्विक मसल्स पे इतना लोड रहता है बिकॉज इट इज ऑल हैंडलिंग योर ऑर्गन्स एज वेल एज द बेबी ऑल्सो, सो वो ड्रॉप डाउन हो जाता है। तो एक्सरसाइजेस से यू कैन मेंटेन ऑल दिस थिंग्स। तो ये सारे कंडीशंस, मतलब ये इससे वुमन गुजरती है, बट वी हैव ऑल दैट पावर टू कम आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, urinary incontinence, you can come out of the back pain, and during the pregnancy also you might feel swelling, जैसे puffiness लगता है आपका face हो, wrist हो, या फिर feet and the legs, because at that time you cannot take any medications. So बचता हमारे पास exercise ही है to come out of that. The other conditions are like pelvic floor dysfunction, abdominal weakness, any dysfunction of the bowel bladder, gestational diabetes, as she said. ये सारे क्या होता है बिकॉज ब्लड शुगर लेवल इतना हाई हो जाता है कि वो बॉडी में सर्कुलेट नहीं करता है, एंड पैंक्रियाज आर नॉट वर्किंग वेल टू क्रिएट दैट इंसुलिन ऑल्सो. So what is happening? If you do the exercise, it could have been circulating well, and आप इसमें लैंड अप ही नहीं करते. सेम वे देयर इज फाइब्रोइड प्री एक्लेम्सिया. इसका मतलब होता है कि ये जैसे डायबिटीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वैसे आपका ब्लड दिस हाई बीपी भी हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है एट दैट टाइम. तो इसको भी हम रेगुलेट कर सकते हैं अच्छे से. Apart from that, there are chances of getting diastasis recti. So many females, how many of you feel your stomach is become flabby? एंड आप उसको एक्चुअली आपको वर्कआउट, आप सोचते हो कि आप एक्सरसाइज करके उसको ठीक कर लोगे. सो मैंने यू फील कि योर स्टमक हैज बिकम वेरी फ्लैबी एंड बहुत सॉफ्ट हो जाता है आफ्टर द प्रेगनेंसी, आफ्टर द डिलीवरी इज डन. यस, रेशमा जी, वैष्णवी जी, हाँ सब हाथ ऊपर कर रहे हैं. यस, सो ये अगर आप अवेयर रहते, यानी ये कैसी बात हो गई कि आपको अगर पता है क्या आप किस चीजों से गुजरने वाले हो, तो पहले से आप एक्सरसाइज करके प्रिवेंट कर सकते हो, so that after pregnancy you do not feel all those things. Okay, you're fit to go. So everyone's dream is what I always feel कि बेबी हो जाए, then again I should come back to whatever my body is now. सबको लगता है कि नहीं, सभी को चाहिए कि बस वापस वैसे हो जाओ, तो उसके लिए पहले से मेहनत करना स्टार्ट करना है. So whenever you see anyone going all through ये सारे कंडीशन से, जस्ट बी अलर्ट एंड अवेयर कि ये चीजें तो होनी है, बिकॉज हम इससे भाग नहीं सकते, ये तो हमारे साथ ही रहना है. So just be alert and aware of about what specific exercises you have to do. Okay. So there are other things also, anemia, pre-labor term. Yeah. Also exercise करने से आपका जो सी सेक्शन है वो उससे भी आप बच सकते हो. एंड यू कैन ऑल्सो रिड्यूस योर लेबर का जो टाइम होता है वो रिड्यूस हो सकता है. प्रीमेच्योर बर्थ का चांसेस कम हो सकता है, एंड यू कैन ऑल्सो कम आउट ऑफ दिस स्ट्रेस एंजाइटी फियर थिंग. Okay, so this was all about the childbearing years. I will go more ahead then in the next slide. Yeah. Now, all this thing has gone. Now we are reaching and approaching towards the menopause. So I can see many females who are either going towards the menopause or have achieved menopause. So can you tell me your symptoms? Are you liking this phase of menopause or you're not liking it at all? What is your opinion? How are you experiencing this? Anyone? कोई है not liking? Anjali ji is not liking. Okay. Yes. And anyone else? Mood swings. Yeah. And any other problem you are facing? Anyone? Yes, Mamta ji ने unmute कुठे किया, जायचं बोलिए. Okay. Anyone? किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है मेनोपॉज में? Me too. Me too. I also don't like. You also don't like. Why you are not liking it? What क्या हो जाता है कि you are not liking it? Ma'am. Actually, when I was having my period, na, that time I was not having any problem related to bleeding and all. But now, Okay. because of the menopause, I'm suffering a lot. Around 15 days, there will be a bleeding. And it was not Okay. happened previously. Previously, it was a regular only.
but हाँ, now it's too much, and any time it can become after okay, 1 month, after 15 days. So it is not हाँ, regular also. That's why I don't like. okay. So you're approaching the menopause actually. Yeah, आपका yeah. मेनोपॉज अचीव नहीं हुआ है, बट या दिस No, no, इज अ हाँ. पार्ट ऑफ इट. ये इरेगुलर जो साइकिल Yeah. हो जाता है ना आफ्टर 55 एंड व्हेन यू आर रीचिंग 60, तो सभी Okay. इससे गुजरते हैं कि कुछ महीने आपको लगेगा, 2-3 महीने आपको पीरियड्स आएंगे ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा बस अभी मेनोपॉज आ रहा है मेरा, और फिर आ जाता Okay. है Okay. पीरियड्स एंड इट इज देयर फॉर लॉन्ग टाइम. एट टाइम्स यू माइट गेट Yes. 2 बार आ जाता है महीने में, एंड कभी स्पॉटिंग आ जाता है. तो उस समय क्या करते हैं, हमको हमेशा वो नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन हमारे साथ कैरी करना पड़ता है, because you never know when you will land up in having periods, correct? तो ये हो जाता है. So this is part of it. Now the thing is how we are going to deal with all these things. हम ऐसा कुछ एक्सरसाइज नहीं अलग से कि बस डायरेक्टली आप मेनोपॉज अचीव कर लो. So we are going to deal with the symptoms. Don't be stressed अगर ये होता है. This is a part of it. Okay? Feeling lethargic. Okay. Okay. So there are few of these. So इसके पहले I just tell you few symptoms. Just tell me whether you are going through all these things or no. Okay? कभी किसी को hot flashes लगे हैं कि ऐसा हुआ है कि जैसे I have experience मेरे घर पे, whenever we are ready to go somewhere out, ज्योति जी, okay. So whenever we are planning to go out, my mother gets ready. But अगर मुझसे 10 मिनट भी लेट हो जाए, she will be all stressed कि why you people are getting late to get ready. Secondly, वो पूरी भीग जाएगी पसीने से, मतलब उसका फेस भीग जाएगा, उसका चेस्ट भीग जाएगा, एंड नॉट शी इज इनटू इरिटेटिंग मोड. So this hot flashes actually happens whenever you feel you are under stress, whenever you're eating some spicy food, या फिर आप कुछ हॉट ड्रिंक भी पी लो तो भी आपको ऐसा फील होगा. सो दिस इज अ सिम्टम ऑफ द मेनोपॉज. एट नाइट ऑल्सो यू माइट फील कि आप सो गए एंड पूरे भीग जाते हो, यू हैव टू चेंज योर क्लोथ्स ऑल्सो, ये भी टाइम आ सकता है. जस्ट बी अवेयर व्हाट सिम्टम्स यू कैन गो थ्रू सो दैट वी कैन गाइड यू एंड हेल्प यू कि उसको कैसे डील किया जाए. Okay. The other thing could be you might feel some dryness into your vaginal area, जहाँ पे आपको स्किन भी ड्राई लगेगी. एंड लेट मी क्लियर, ये जो मेनोपॉज होता है ना, ये सारा खेल होता है ना, वो इस्ट्रोजन का ही होता है. कि जैसे ये जो लेवल ऑफ इस्ट्रोजन कम होता है, इट लीड्स टू ऑल दिस थिंग्स. सो वी वुमेन हैव समथिंग टू ब्लेम ऑन एक्चुअली नाउ, कि इस्ट्रोजन की वजह से मुझे ये सब कुछ होता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, सम वुमेन माइट गो इनटू साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, हो जाता है, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है. जैसे मेनी ऑफ यू आर इमोशनली डिस्टर्ब बिकॉज यू नॉट लाइकिंग दैट थिंग एट ऑल. ओके. सो एक तो लेवल कम हो जाता है, वो तो हम मान गए, पर उसके अलावा जो एनवायरमेंट में हम रहते हैं, don't let it affect all these things. Okay, so we'll guide you through that also. And I was talking about the vaginal dryness. So that is one thing. So you are more prone to get vaginal infection also. So iska solution ये है कि you have to maintain that hygiene also. Okay, the other symptom is about the urinary incontinence हो सकता है, because pelvic floor muscles ना अभी weak हो गए. So how many of you try to exercise, but we are exercising everything, but are we exercising for the pelvic floor muscles? Anyone who is doing pelvic floor muscles, you can do this. कोई जानते हैं pelvic floor muscles के exercise भी होते हैं? Anyone? We know all the exercise for the neck, back, legs, correct? Yes, Anyone who yes, knows pelvic floor? yes, 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 First of sir. all, whether they know pelvic floor muscle or not, then Yes, that. of the exercises. Yes, yes. Yes, ओके. तो दिस इज हाउ. सो pelvic floor मसल्स भी वीक हो जाते हैं, एंड देन हमें स्किन भी बड़ी ड्राई लगती है. ऐसा नहीं कि बस पेल्विक एरिया में ड्राई लगता है, ओवरऑल भी हमको स्किन ड्राई लगता है. दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन लेवल कमिंग डाउन. ओके, सो दीज आर फ्यू ऑफ द सिम्टम्स. Okay, and apart from that, you might feel your joints are paining, your spine is also not, you feel that back pain, knee pain, then ankle में होता है, कभी बैठ के उठने में पेन होता है. This is all related to the estrogen level. You might undergo arthritis, और आपको osteoporosis हो सकता है, because again जो बोन का जो फॉर्मेशन होता है, उसका फॉर्मेशन का ना जो स्पीड होता है, दैट इज लेस एज कम्पेयर टू उसका रीएब्जॉर्प्शन का फॉर्मेशन. ओके, सो थोड़ा ऊपर नीचे होता है. सो बैलेंस कभी होगा ये दोनों चीज, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तभी दोनों चीज भी बैलेंस हो जाएगा. ओके, दिस इज हाउ इट हेल्प्स इन
menopause as well as when come to the geriatric thing. Geriatric यानी क्या? Old age. So we will find similar things in both of them. Okay, we'll just go through a few of the problems as we discussed. That was the incontinence, obesity यानी वजन बढ़ जाना, insomnia, रात को ठीक से नींद नहीं आती है, and hot flushes, that is because of the hormonal imbalance, osteoporosis, weak bones and increased morbidity, यानी जो लाइफस्टाइल डिजीजेस होते हैं उसके रिस्क बढ़ जाता है, यानी बीपी, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, थायराइड प्रॉब्लम्स है, इसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं. देन मोर प्रोन टू द फ्रैक्चर्स ऑफ द बोन्स एंड द स्पाइन एंड बैक पेन. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है ओल्ड एज में? हमारी एक्टिविटी लेवल कम हो जाती है, हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, सो फैट मास बढ़ते जाता है. सो ऑल दिस इज गोइंग टू बी लेवल्ड ओनली इफ यू हैव द नॉलेज अबाउट स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस. Okay, we'll go ahead with the other slide. Okay, so these were all the conditions. Now, Dr. Amit, would you take the ahead about the treatment and everything? No, not treatment. I will talk about the core muscle and back muscle. Okay. Okay, so अभी आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया women health के एक सेक्शन का, you know. So basically, why it is important to take care of your muscles physically? It's very important to understand physically, हाँ, क्योंकि पूरा का पूरा आपका pelvic floor muscle पे ही सारा का सारा आपका reproductive organ ऐसे रखा होता है. It's like your pelvic floor muscle. So let's understand what is pelvic floor muscle and what is your core. So here I have a ball to show you, या बलून समझ लीजिए. तो ये आपका मान लीजिए टमी है, और नीचे का जो पोर्शन है दैट कम्स टू pelvic floor. ऊपर का पोर्शन होता है डायफ्राम. ओके, तो डायफ्राम होता है वो यू नो रेस्पिरेटरी मसल होता है जो हमारे यहाँ पे होता है, इधर ऐसे. तो ऐसे यहाँ पे डायफ्राम होता है, अब चेस्ट और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में इस तरह से. तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं. जैसे हमारा पेट है, यहाँ पे डायफ्राम मसल है और नीचे pelvic floor मसल रहेगा ऐसे. ठीक है, यदि हम इसको ऊपर से देखें फिर से तो ये इस तरह से होता है. तो ये पीछे नीचे है आपका pelvic floor मसल, ऊपर डायफ्राम मसल है, और ये सामने है टमी की मसल, और पीछे रहेगा बैक का मसल. तो एक तरह से सिलेंडर पूरा यू नो लाइक सिलेंड्रिकल एक कैविटी जैसा होता है. तो व्हाई आई हैव टेकन दिस बलून, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, आई विल टेल यू. जैसे हम हमारा जो कमर है इस चीज को ऐसे समझते हैं. ठीक है, कमर है वो पीछे है, आगे टमी की मसल है, नीचे पेल्विक फ्लोर है, ऊपर डायफ्राम. इन सारे मसल का सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है. अदरवाइज व्हाट विल हैपन? सपोज योर पेल्विक फ्लोर मसल्स आर वीक, योर डायफ्राम आर वीक, योर टमी या बैक का मसल वीक है, तो वो सब डिस्टर्ब होगा. यदि आपको बैक पेन है तो आपको पेल्विक फ्लोर में इशू हो सकता है. यदि आपके पेल्विक फ्लोर में प्रॉब्लम है तो बैक पेन हो सकता है. टमी में इशू है, टमी निकला हुआ है, जैसे आप पोस्ट प्रेगनेंसी वो फ्लैबी हो जाता है, मसल्स वीक हो जाते हैं, निकल जाता है पाउच, तो वो सारा आपके पेल्विक फ्लोर को वीक करता है, एंड दैट इट कॉल्स आल्सो बैक पेन. सो हाउ इट्स इंटर रिलेटेड? सपोज यहाँ पे बलून है, एंड आप बलून यदि ऊपर की मसल टाइट है तो नीचे दबेगी, यदि नीचे की मसल टाइट है तो ये ऊपर दबेगा. तो ये क्या होता है? ये इंटर एब्डोमिनल प्रेशर है, वहाँ पे एयर एक तरह से प्रेशर होता है, दैट एक्चुअली प्रेस योर इंटर रिलेटेड करता है. मतलब मान लीजिए आपने सांस लिया तो ये डायफ्राम मसल ऐसे होता है, और आपका जो पेल्विक फ्लोर है ऐसे होता है. तो ये तरह से काम करता है. इस तरह से सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए आइडियली. ये आपका जो पेल्विक फ्लोर मसल उसके साथ ऐसा रिलीज होता है, एंड देन टाइट टाइट मतलब कॉन्ट्रैक्ट, रिलीज मतलब रिलैक्स. उसी तरह से जो आगे पीछे की बैक की मसल है आपके, ये फ्रंट की मसल मतलब टमी की, पीछे बैक की मसल,
वो भी उसके साथ वो कोऑर्डिनेट करती है स्पाइन के साथ। सो इसका एक मेरे पास वीडियो है, द वीडियो इन द ग्रुप। सो ग्रुप हमने जो बनाया है, ये जो ग्रुप है विमेन हेल्थ का ग्रुप है, ये कोई अभी आज के प्रोग्राम के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम। सो वी आर गोना हेल्प यू फॉर लॉन्ग टर्म। We are gonna give you a lot of videos. You will learn about your biomechanics, about your physiology of human body. बहुत सारी चीजें हैं जो विमेन हेल्थ का कोई ज़्यादा डिस्कशन होता नहीं है। गायनेक के पास टाइम नहीं है बात करने को, किसी के पास कोई टाइम नहीं होता। सो दिस ऑल थिंग्स हम धीरे धीरे आपको एजुकेट करेंगे। बट हमारा यहाँ पे फोकस है फिजिकल हेल्थ के ऊपर। देयर लॉट ऑफ इश्यूज इन विमेन हेल्थ, लाइक गायनेक डॉक्टर से रिलेटेड, या फिर hypertension, skin related, hormone related, endocrine. A lot of issues are there, but here we are trying to focus main things in your physical health, like your muscles, joints, and muscles, joints are very, very important, very, very important. And what we realize that people are coming to us very late. बहुत देर में आते हैं, जैसे कमर के पेन तो लेके आते हैं हमारे पास, पता चलता है उनका कमर का पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका pelvic floor weak है। Now, it's very difficult to teach about the pelvic floor sometime in OPD setup in our clinic, because we just, when we see their gynec related problems, then we see there are a lot of issues has to be addressed separately. So we realize कि हमें एक अलग से प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है, and so that's why we have come up with this program. So how ये जो मैं मॉडल बता रहा था, इसमें चारों जो मसल है, आगे पीछे एंड ऊपर नीचे की मसल एकदम सिनर्जी में होना चाहिए। आपको यदि कमर दर्द है, यदि स्पाइन केयर प्रोग्राम आपने कहीं किया होगा, स्पाइन केयर या बैक पेन से यदि कोई जूझ रहा होगा, बहुत सारे लोगों को लिखा था उसमें आई थिंक फॉर्म में कि बैक पेन है, तो हो सकता है कि आपकी पेल्विक फ्लोर मसल वीक हो सकता है कि बैक भी टाइट। तो ये हम आपका प्रॉपर एग्जामिन करने वाले हैं। अभी मधुरा आपको बताएंगी कि हाउ टू एग्जामिन योर पेल्विक फ्लोर, कि वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, जिससे आप उसको एग्जामिन करके यू कैन लर्न द एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन दैट मसल्स। सो आपको एक एक स्टेप हम गाइड करेंगे, राइट। सो अभी कोर मसल इसी को बोलते हैं, चारों मसल को मिला के हम कोर कहते हैं। व्हाई कोर इज इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव सीन द क्रेन। जो क्रेन होता है, यदि क्रेन मान लीजिए क्रेन का ये हाथ है, तो क्रेन का जो बेस होता है बहुत स्ट्रांग होता है, इट्स हैवी, एंड देन वो क्रेन पकड़ता है और हैवी आइटम्स को उठाता है अपने आर्म्स से। यदि मान लीजिए क्रेन का जो बेस है स्ट्रांग ना हो या हैवी ना हो, तो क्या होगा, या हल्का है, या जो चीज उठा रहा है वही ज्यादा वजन हो गया, तो क्या होगा, क्रेन का क्या होगा। आपने देखा होगा, खासकर आजकल शॉर्ट्स में बहुत वीडियो आते हैं, एक आध वीडियो मैंने देखा था रिसेंटली। क्या होगा यदि कोई क्रेन है जो वो कमजोर क्रेन है और हैवी आइटम को उठा रहा है, तो क्या होगा, एनीवन गेस करो। Heavy item will fall. हैवी आइटम विल फॉल और क्रेन भी फॉल हो जाएगा। हैवी आइटम तो उठेगा ही नहीं, तो थोड़ा बहुत उठेगा और उसके साथ क्रेन भी गिर जाएगा, करेक्ट ना। सेम थिंग हैपेंस विथ आवर कोर मसल्स। कोर मसल एक्चुअली हमारा बेस बनाता है। तो आपकी जो लिम्स है, आपके हाथ, आपके पैर, जो हम आपके टमी, ये सब कोर मसल्स के अराउंड लगी हुई है। मतलब आपका जब तक कोर स्ट्रांग नहीं होगा, जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, सपोज आपने आर्म्स में अपने कुछ हैवी वजन उठाया है, किचन का काम कर रही हो, जस्ट कुकिंग ऑल द टाइम एंड यू आर टाइपिंग, सो ऑल द टाइम यदि आपका कोर स्ट्रांग नहीं है, तो वो आपके हाथ पे ज्यादा जोर आएगा, आपके नेक में जोर आ जाएगा, आपके एसआई जॉइंट पे जोर आ जाएगा, क्योंकि आपका कोर वीक है। यदि कोर स्ट्रांग रहता है तो आपको बॉडी उसको उसके स्ट्रेन को बराबरली डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कोर जो है पूरे बॉडी का बेस है, आपका क्रेन है, वो स्ट्रांग रहना, क्रेन का बेस है, तो वो स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो ये था कोर के बारे में। अभी मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ ये प्रेजेंटेशन को। सो हम लोग करते क्या है,
ये मैं बताऊंगा। और उसके पहले हमारा कई सारे प्रोग्राम्स हमने डिजाइन किए हैं। हमने कोरोना के टाइम आई थिंक 4 या 5 प्रोग्राम किए थे। आई डोंट नो इनमें से कोई अभी ज्वाइन किया है कि नहीं वो वाला प्रोग्राम। तो हमें बहुत सारा अच्छा रिस्पांस आया था, बट बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल वी कुड नॉट टेक इट फॉरवर्ड। सो अभी हमने काफी सारा उसमें होमवर्क कर लिया है एंड वी हैव रेडी प्रोग्राम्स फॉर विमेन्स हेल्थ। अभी हम नए सिरे से इसमें आगे आने वाले। So lots of videos are coming up, lot of programs are coming up, paid programs, 3 day sessions भी हैं हमारे, consulting sessions हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल देता हूँ and then we'll talk further about women's health, right? So let me talk about what we do. So let's see. Okay, can you see the screen? Yes, we can. Okay. So now what we do, let's understand in 10 minutes and then we'll talk further more about women's health. So treatment and management में अभी इतनी सारी आपने प्रॉब्लम सुनी, डिफरेंट स्टेजेस में होती है। इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है इन प्रॉब्लम को जानना, अवेयरनेस रहना आपको कि ये क्या है। क्यों अवेयरनेस रहना चाहिए? एनीवन ऑफ यू, क्यों रहना चाहिए अवेयरनेस? अवेयरनेस से क्या क्या होगा? ट्रीटमेंट हो जाएगा क्या? Prevention. What? I didn't hear. Sorry. We can prevent the problem. You can prevent the problem. So जब हमने स्टडी किया, फिजियोथेरेपी के सिलेबस में विमेन्स हेल्थ प्रोग्राम होता है। Many people are wondering कि भाई फिजियोथेरेपी से विमेन हेल्थ में क्या कर? Many people must be wondering, right? So ये हमारा कोर सिलेबस है। विमेन हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस एंड हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन में विमेन हेल्थ भी करते हैं कुछ थेरेपिस्ट। सो इसमें हम लोग मसल्स जॉइंट के हेल्थ पे ध्यान देते हैं। एग्जांपल दूंगा, you'll understand why it is very important to understand that physiotherapists are number 1 profession in dealing with women's health. एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए प्रेग्नेंट लेडी है, वो क्या दवाई खा सकती हैं अपने कमर दर्द है के लिए? कमर दर्द है उनको, तो क्या दवाई खा सकती हैं? नहीं खा सकती। आपने किसी ने दवाई लिया है, मतलब हाई डोज ऑफ ड्रग फॉर पेन, जॉइंट पेन? लिया है? नहीं खाना चाहिए, इट्स नॉट गुड। नहीं खाना चाहिए, नॉट गुड। व्हाई? व्हाट माइट बी द रीजन? Affects the baby also. Yeah, correct. Because you are undergoing physiological changes during pregnancy, lot of physiological changes, which is anyway not, normally जो women's में है उससे कई गुना ज्यादा आपका, जैसे किसी ने बोला अभी gestational diabetes and anemia and all those things, a lot of complications. तो उसमें फिर एक और ड्रग आएगा तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिचुएशन। So I have got many calls during pregnancy that I have severe back pain. We have got many referral from doctors that इसको back pain है, तो आप ठीक करिए। And believe me, उनको सिर्फ एक posture, एक exercise और एक सावधानी बरतने से पूरा उनका दर्द कम हुआ और उनको ये पता ही नहीं था। और वो डॉक्टर ने भी कई बार उन्होंने भेजा नहीं और उन्होंने फ्रस्ट्रेट होके कहीं से कहीं से पूछ के उन्होंने हमसे कंसल्ट किया और दे फेल्ट बेटर। सो प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो बायोमैकेनिकल चेंज होता है, आपका स्पाइन थोड़ा उसमें उसका जो अलाइनमेंट है चेंज हो जाता है, आपका पोस्चर चेंज हो जाता है, मसल एकदम लैक्स हो जाते हैं। तो ये सब जो है मैकेनिकल चेंजेस होने के कारण आपका पोस्चर, आपका अलाइनमेंट, आपका मसल बैलेंस, एनर्जी बैलेंस करना, मैनेज करना, ये इम्पोर्टेंट बहुत हो जाता है। और ये जानना बहुत, ये पहले जानना चाहिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जानना चाहिए? पहले। क्यों? पहले क्यों? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ना। सर इज बेटर देन क्योर। या दिस इज, हाँ ठीक है, वो बहुत सबको पता है बट लोग इतना नहीं जान पाते। आपको अच्छे से रिसर्च करना चाहिए कि मेरा ये तकलीफ है कैसे जाएगा, बट वो जल्दी लोग परेशान रहते हैं और शॉर्टकट ले लेते हैं, दे पॉप द पिल एंड देन डू एनीथिंग। सो प्रॉपर्ली रिसर्च एंड देन प्लान योर प्रेगनेंसी।
और फॉर दैट मैटर एनीथिंग, किसी भी हेल्थ इश्यूज के लिए आप प्रॉपरली रिसर्च करके ट्रीटमेंट लें, आंख मूंद के ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर भी दिखा रहा है तो उसको डॉक्टरों से लॉजिक क्वेश्चन करिए कि भाई इसको आपने सर दिया, इसका क्या फायदा है, मुझे क्या तकलीफ। आई हैव सीन मेनी पेशेंट जस्ट दे गो टू डॉक्टर, उन्होंने ये दिया, आपने वो ले लिया, बस खत्म। वो पूछते नहीं है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो डॉक्टर के पास भी टाइम नहीं रहता बताने का। बट आप पूछिए उनसे कि ये क्यों हो रहा है, राइट, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हम क्यों कर रहे हैं। अवेयरनेस इज ट्रीटमेंट, एजुकेशन जो है आधा से ज्यादा ट्रीटमेंट है। विमेन हेल्थ में देखिए, हार्मोनल प्रॉब्लम में क्या करोगे, हार्मोनल थेरेपी ले लोगे, डायरेक्ट नहीं ले सकते, इट्स वेरी डेंजरस समटाइम, यू कैन नॉट टेक ड्रग्स डायरेक्टली, बहुत सारी चीजें इनडायरेक्ट है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, hormones, mostly hormonal issues है, stress hormones and physiological changes, stress, so ये सब प्रॉब्लम लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। 90% ऑफ women health are lifestyle issues. प्रेगनेंसी में complications हैं, your lifestyle is bad, you have all those complications during and after pregnancy and whatever problems you have after menopause, also during menopause, all the stages we are actually covering from childhood to menopause or even geriatric population, in all age group. It's related to lifestyle we have seen, and physiotherapy is we give a lot of education to our patients. So this is very, very important to be aware that what problem you have, how much drug you need, how much education you need, and what exercise and how much to exercise, which kind of अच्छा exercise को लोग बहुत ही generally ले लेते हैं। मैं तो हमसे जब पूछते हैं लोगों से तो बोलते हैं हाँ मैं एक्सरसाइज तो करती हूँ, क्या करते हो, मैं वॉकिंग पे जाती हूँ रोज। तो क्या करते हो, हाँ मैं 15 मिनट वॉक कर लेती हूँ, आ जाती हूँ। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वॉकिंग मतलब सब कुछ एक्सरसाइज हो गया। एक्सरसाइज दवा की तरह होता है, एक्सरसाइज इज जस्ट अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अच्छा रजनी जी ने बोला, वेरी गुड, करेक्ट। तो एक्सरसाइज इज वेरी गुड एक्सरसाइज बट नॉट एवरीथिंग, और हर चीज वो वॉकिंग ही नहीं काम आता है। अब हमारा फिजियोथेरेपी प्रोफेशन पूरा एक्सरसाइज के ऊपर है, तो कोई भी बीमारी में हम लोग एक्सरसाइज को एक दवा की तरह प्रिस्क्राइब करते हैं, और आप यकीन नहीं मानोगे 10-10 साल तक तकलीफ रहती लोगों की, चाहे गैनक रिलेटेड प्रॉब्लम ही के लिए होगा, कुछ एक्सरसाइज से वो जल्दी ही ठीक होती। आई हैव ट्रीटेड मेनी पेशेंट हु हैड इनफर्टिलिटी इशू एंड माय एक्सरसाइज हेल्प्ड। Will you believe it? So that's why we got inspired to take this spine care program. And exercise is very specific. हमारा जैसे आपने कोरोना के टाइम पे देखा होगा, प्रोनिंग, उल्टा लेटना, क्या है, एक्सरसाइज है, पोस्चर चेंज है। प्रोनिंग में क्या होता है, आपने देखा बहुत, कोरोना के टाइम याद है आप लोग को, किसको याद है प्रोनिंग क्या होता है, बताओ एनीवन? 10 years कुछ हो जाता है तो क्रॉनिक हो जाता है। प्रोनिंग मतलब पेट के बल लेटना, कोरोना में नहीं बोलते थे पेट के बल लेटो तो तुम्हारा क्या, प्रोनिंग ऑक्सीजनेशन बेटर हो जाएगा, तो तुम्हारा लंग को ऑक्सीजन मिलेगा। तो वहां पे दवाई वाई थी नहीं, तो लोग उल्टे लेट के ही उसका इलाज करते थे आईसीयू के अंदर। तो ये उल्टा लेटना उस समय जब आपको ऑक्सीजन की कमी है लंग्स में, इट्स अ टेक्निक ऑफ फिजियोथेरेपी एंड दिस इज जस्ट एन एक्सरसाइज, दैट्स इट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्सरसाइज का इतना इंपॉर्टेंस होता है। आईसीयू में हमारी ड्यूटी होती है वी सेव लाइफ्स समटाइम, जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, मान लो प्रेगनेंसी है या कोई भी सर्जरी के समय, उसके काफ के ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग हो जाती है। ऐसे केस में यदि हमने उनको एक्सरसाइज गलत वाली दे दी तो सडन डेथ भी हो सकता है, और सही टाइम पे सही एक्सरसाइज दी तो वो यदि आईसीयू में वो मर रहा है पेशेंट तो वो जी भी सकता है, ऐसा होता है। दिस इज दैट क्रूशियल, व्हाई आई एम टेकिंग दिस एक्सट्रीम एग्जांपल, बिकॉज यू अंडरस्टैंड एक्सरसाइज को थोड़ा सीरियस लेने की जरूरत है बाबा। एक्सरसाइज योर मेडिसिन है ना। ये जो वेस्टर्नाइज कल्चर में मेडिसिन घुसा हर चीज के लिए शॉर्टकट, तो ये हम लोग अपना जो योगा है, जैसे योगा इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक टू बी इन वेलनेस। तो बट योगा का प्रॉब्लम भी है
कि योगा को कहीं से भी लोग करते हैं, यूट्यूब में देख लिया, कहीं से पढ़ लिया, कुछ भी कर रहे हैं, उससे फायदा नहीं होने वाला, उल्टा कभी नुकसान भी हो सकता है। आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट हु आर योगा ट्रेनर, जिम ट्रेनर, योगा स्टूडियो ओनर, एंड दे आर टीचर देमसेल्व्स, दे आर सफरिंग। वो खुद ही क्या सिखा रहे हैं पता नहीं, राइट? सो दैट्स व्हाई मेरा यही मैसेज है, प्लीज टेक एक्सरसाइज वेरी सीरियसली। इट कैन चेंज योर लाइफ 180 डिग्री, कैन चेंज योर लाइफ, आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। सही एक्सरसाइज को सीरियसली लेने की जरूरत है, मेडिसिन से ज्यादा सीरियसली लेना एक्सरसाइज को जरूरत है, राइट? सो ये है हमारा अप्रोच, जैसे कि असेसमेंट और एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट एंड ऑफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट। तो पहले असेसमेंट करना जरूरी है। इसमें क्या करते हैं, असेसमेंट में थॉरोली एग्जामिन करना होता है हमें, फिजिकल एग्जामिनेशन, उनका पोस्चर एग्जामिनेशन, मसल का कंडीशन, जॉइंट का कंडीशन, उनका पेल्विक फ्लोर एग्जामिनेशन, उनको एक एक जॉइंट एंड मसल का कंडीशन देखते हैं, उनका सिम्टम चेक करने के बाद वी कम टू कंक्लूजन कि उनको क्या ट्रीटमेंट देना है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है पेन को ट्रीट करना। तो पेन को ट्रीट करने के लिए एक्सरसाइजेस, सबसे देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है पोस्चर करेक्शन से पेन कम होता है, एक्सरसाइज से पेन कम होता है। ऐसी एक्सरसाइजेस होती है जिससे पेन कम होता है इस पर्टिकुलर कंडीशन, ड्राई नीडलिंग, कपिंग, और बहुत सारे और मोडालिटीज हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी, ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं व्हाट वी यूज टू रिड्यूस द पेन। और ये सारे नेचुरल टेक्निक हैं, ड्रग्स फ्री टेक्निक्स हैं, ठीक है? अब एक्सरसाइज थेरेपी, एक्वाटिक थेरेपी, कपिंग, ये सब टेक्निकल टर्म है, बट आप जस्ट एक बार पढ़ लो। रिलैक्सेशन टेक्निक, ब्रीदिंग, योगा एंड मेडिटेशन। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा और मेडिटेशन भी ट्रीटमेंट की तरह यूज किया जा सकता है, एंड वी डू दैट। सो दिस इज वेरी क्रूशियल, ये हम लोग करते हैं। नाउ ये जब पेन कम हो जाता है, उसके बाद वी डू रिकवरी ऑफ फंक्शन, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड रिहैबिलिटेशन। जैसे मान लीजिए आपका जो पेन कम हो गया, इनफ नहीं है ना? आपको यदि आपके मसल्स में ताकत नहीं है, ज्वाइंट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यू डोंट हैव मोबिलिटी ओवरऑल, यू डोंट हैव बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब आपके ज्वाइंट में कुछ तकलीफ है, आपको चलने में इश्यूज आ रहे हैं, बैक पेन, नेक पेन, ये सब हो रहा है, तो ये सब चीजें नेक्स्ट लेवल की एक्सरसाइज से होती हैं। आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा इस मसल को स्ट्रेंथन करना पड़ता है, यू नो। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको पूरा अपने मसल को स्ट्रेंथन करना है। आधा सिर्फ पेन को, और स्ट्रेंथन करने में एक वीक मसल को कम से कम 6 हफ्ते लगते हैं। कितने हफ्ते लगते हैं? 6 वीक। ऑल्दो आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया है, प्रॉब्लम ठीक हो गया, प्रॉब्लम मतलब पेन कम हो गया या जाग चला गया, बट फिर भी आपके मसल्स को स्ट्रेंथ आने में कुछ टाइम लगता है। तो ये फिजियोथेरेपी सिर्फ ट्रीटमेंट का नहीं विषय है, ये तो आपके आपके लाइफस्टाइल का विषय है कि आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी बनाने में मदद करता है, तो आपके जो काम है दिनचर्या के, उसको करने में आपकी मदद करेगी, राइट? सो एंड देन आता है रीट्रेनिंग। रीट्रेनिंग मतलब आपका फिटनेस। तो हर किसी का एक कस्टमाइज फिटनेस प्रोग्राम होना बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर women who are pregnant और you know they have underlying problems। उनका, जैसे अभी मधुरा मैम ने बताया कि बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसमें एक्सरसाइज करने की बहुत जरूरत होती है, तो उसमें आपको कस्टमाइज एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। जनरलाइज फिटनेस प्रोग्राम, पेल्विक फ्लोर फिटनेस, कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग, ब्रीदिंग, मेडिटेशन प्रोग्राम, एक्वाथेरेपी, ये सब हम करते हैं। योगा एंड पावर योगा, ये भी यूज किया जा सकता है टू यू मेक यू फिट। ये था जो बेसिकली हम लोग करते हैं 3 आवर प्रोग्राम, कोई भी हेल्थ कंडीशन है विमेन से रिलेटेड, ठीक है? तो अभी तक आपको कोई क्वेश्चन है इसमें, एनीथिंग यू वांट टू आस्क?
So I just mentioned कि exercise is so important. You can take exercise like medicine. जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी लिखा है, थायराइड, हाइपोथायराइड, डायबिटीज, बैक पेन, सियाटिका, इसका स्पेसिफिक एक्सरसाइज होता है, राइट? सो लेट्स गो अहेड. मैं आगे चलता हूँ. मेंस्ट्रुएशन के बारे में आगे बात करेंगी. ये मेंस्ट्रुएशन रिहैब के बारे में बात करेंगी डॉक्टर मधुरा. लेट मी talk about something else. Let me talk about some other things what we do. Menstruation rehabilitation में दो स्पेसिफिक चीजें हैं, जनरल ट्रीटमेंट एंड पेल्विक फ्लोर ट्रीटमेंट. जनरल ट्रीटमेंट में डाइटरी मैनेजमेंट आता है. सो वी गिव डाइटरी प्रोग्राम ऑल्सो कि आपका क्या तकलीफ है, उसके लिए किस तरह का खाना खाना चाहिए. एक्सरसाइज, इसमें एरोबिक एक्सरसाइज कैसा होना चाहिए, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कैसा होना चाहिए, कुछ मोडालिटीज की जरूरत है आपको. तो ये मेंस्ट्रुएशन के समय जो पेन होता है पीरियड में, बैक पेन से रिलेटेड होता है, वो उस सब में हम लोग देते हैं. स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए वी टीच ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड सम अदर टेक्निक्स. योगा थेरेपी, योगा पोस्चर्स को वी यूज फॉर ट्रीटमेंट पर्पस फॉर. तो ये आप योगा सीख सकते हैं. आपके लिए जो स्पेसिफिक कस्टमाइज प्रोग्राम है वो विमेन्स हेल्थ रिलेटेड योगा. पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन में अभी आपको मधुरा बताएंगी कि कौन कौन से एक्सरसाइजेज हैं. इसके पहले मैं ये पूरा कर ही देता हूँ, देन वी विल कम टू आवर प्रैक्टिकल सेशंस. सो हमारा हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम में पहले वेबिनार है अभी जो चल रहा है, वर्कशॉप वो फ्री है, कंसल्टेशन एंड चेकअप कैंप हम लोग करते हैं. तो आज जो रजिस्टर करेगा कंसल्टेशन के लिए हमारा वो फ्री है. आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन एक मिलेगा हाफ एन आवर का, जिसमें आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो डॉक्टर मधुरा के साथ, या यू कैन कंसल्ट मी ऑल्सो, तो वो फ्री रहेगा. वी कैन फिक्स अप टाइम सम अदर टाइम, आज नहीं हुआ तो, लेकिन आपको बुक आज करना होगा, देन यू विल गेट कंसल्टेशन फ्री. एडुकेटिव एंड इंफॉर्मेटिव यूट्यूब वीडियोज अबाउट विमेन हेल्थ, बहुत सारे वीडियो अभी और आने वाले, वो आपको सारे एक्सेस फ्री मिलेंगे. हमारा एक 3 दिन का वर्कशॉप है जिसे हम पेल्विक फ्लोर हेल्थ वर्कशॉप कहते हैं, जिसमें पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग, कोर स्ट्रेंथनिंग से रिलेटेड सारे एक्सरसाइजेज, एग्जामिनेशन सब आपको बताई जाएंगे. प्रेगनेंसी फिटनेस का एक प्रोग्राम है जिसमें ओनली फॉर प्रेग्नेंट लेडी और जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है उनके क्या एक्सरसाइज प्रोग्राम होना चाहिए उनके लिए है. लाइफस्टाइल डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम जिसमें डायबिटीज या हाइपरटेंशन है किसी को, या और मेनोपॉजल टाइम पे कुछ हेल्थ इश्यूज हैं कौन से रिलेटेड या हार्मोन से रिलेटेड, तो उसके लिए भी प्रोग्राम है. एंड वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम. तो ये कंसल्टिंग फीस जनरली 500 होता है हमारा, आज के लिए फ्री है ये जो आज रजिस्टर करेगा. ऑनलाइन एंड ऑफलाइन भी है तो आप उसका ले सकते हैं. एंड तो हमारा 15 डेज का प्रोग्राम का आफ्टर एग्जामिनेशन विल कम टू कंक्लूजन कि आपको कुछ जरूरत है कि नहीं है. तो कोई भी यदि आप इसका लेना चाहते हैं फायदा, तो आप ये 10 डेज, 15 डेज, 30 डेज और 60 डेज के प्रोग्राम अलग अलग हैं, उसका आप फायदा उठा सकते हैं. ये चार्ट शीट आपको भेज देंगे. तो ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर, आपको तकलीफ क्या है उसके हिसाब से आपको गाइड करते हैं, और वो उसके हिसाब से आप ये प्रोग्राम ले सकते हैं. तो ये आपको फ्री कंसल्टेशन के समय पता चलेगा कि हाँ मुझे कुछ जरूरत है कि नहीं. एंड देन विमेन पेल्विक हेल्थ वर्कशॉप जो 3 दिन का है वो हम लोग नवंबर में करने वाले हैं आफ्टर दिवाली. जो यदि आप आज रजिस्टर करते हैं आज रात तक, तो आपको 1000 रुपए में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. आई थिंक आफ्टर दिवाली डेट हम लोग जो भी है कन्वीनियंट डेट फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में ही होगा आई थिंक. तो वो 3 डेज का प्रोग्राम है, उसमें आफ्टरनून में आई थिंक 2 से 5 के बीच होगा प्रोग्राम. तो उसमें सारे एक्सरसाइज रिलेटेड टू पेल्विक फ्लोर
how to examine your pelvic floor, all those things are आपको explain किया जाएगा, so that you can do. Right? So over to Dr. Madhura, आपको कुछ आज tips देने वाली है, exercise आज बताएंगे, and how to examine your pelvic floor. Thank you. Yes. Okay. Again, सबके cameras off हो चुके हैं. So we just switch on so I can see you. Because अभी हम जानेंगे कि अभी pelvic floor सुन तो लिया हमने, but how to identify, like do you know where these pelvic floor muscles are? How do you feel them? Okay, so वो हम लोग करेंगे. So nearby, if you have this towel, आप towel ले सकते हो. Otherwise, if you have pillow nearby, you can use pillow. If you have nothing, it is okay. Just sit on the edge of the chair. अगर आप edge chair पे बैठे हो. Okay, so just a minute. Okay, so like I'm sitting on the chair right now. Okay, so if you're on the chair, just edge पे आ जाओ उसके इस तरह से. Okay, and if you have this towel or a pillow, then you can just place it here at the center and then just sit here. Okay, तो center में आ जाना चाहिए इस तरह से. ठीक? हाँ, अभी हम फील करेंगे pelvic floor muscles होते क्या है. ओके, तो एक बार आप ऐसे बैठ गए, जस्ट कॉफ. ओके, so everyone just perform this and tell me कि आप क्या फील करते हो. वो कॉफ करने पे अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे आपके pelvic floor muscles पे, what do you feel? Okay, so everyone just do that and let me know. सभी को परफॉर्म करना है. Contraction, okay. हाँ, anyone else? What do you feel when you cough? You can एक दो बार cough कर सकते हो. At that time, what do you feel? The pelvic floor muscles are moving. Are they? जिसको कुछ फील नहीं हो रहा है वो भी मुझे बताओ. जिसको कुछ फील हो भी रहा है, even you answer. Pelvic floor muscles are moving. Moving, okay. हाँ, and is there anyone जिसको बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं फील हो रहा है, ऐसा कोई है? Don't be embarrassed to tell all these things. It is normal and this happens with everyone. Everyone goes through all this stage. Okay, fine. सभी ने ट्राई कर लिया? ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हो कर रहा लिया है. क्या? कुछ नहीं हो रहा है. ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम. ओके, तो अभी इसमें क्या फील होना चाहिए? तो व्हेनेवर यू कॉफ, एक तो एक ऑप्शन है कि आपको ऐसा लगेगा कि pelvic floor muscle टुवर्ड्स टॉवल या फिर टुवर्ड्स आपके पिलो प्रेस हो रहा है. नंबर 1. नंबर 2, आपको फील हो सकता है कि आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो. यानी मैं करती हूँ तो pelvic floor muscles ऊपर की ओर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं. ओके, तो जिनके लिए ऐसा लग रहा है कि ऊपर की ओर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू कैन फील योर pelvic floor muscles. सब कुछ ठीक है. हाँ, यस, प्रीति जी का थम्स अप आ रहा है. ओके, एंड फॉर दोज जिनका नीचे की ओर पुश हो रहा है टुवर्ड्स द टॉवल, इट इज ओके बिकॉज आपको मैकेनिक्स नहीं पता था, सो आप नीचे पुश कर रहे हो. तो ऑलवेज रिमेम्बर pelvic floor muscles को आपको हमेशा पुल करना है ऊपर. सो एनी एक्टिविटी यू डू, you just try to do this movement. आप ऐसे बैठे रहो, still try to just concentrate and pull and squeeze it towards yourself. Okay, ये एक चीज हुआ उसको जानने के लिए. And for those who are not able to identify also, your pelvic floor muscles might be weak. Okay, this still chances. हम और जानेंगे आपकी वीक है कि नहीं है. Okay, this was just to understand and feel के pelvic floor muscles कैसे होते हैं and कहाँ पे होते हैं. Okay. नाउ अबाउट द एग्जामिनेशन. तो अभी हमको जानना है कि आपके pelvic floor muscles वीक है या वो टाइट है. दोनों में से एक हो सकता है. ओके, क्योंकि बस मेरे एक्सरसाइज बताने से काम नहीं होगा, उसके पहले आपको जानना होगा कि वो वीक है कि टाइट है. क्योंकि हम जो एक्सरसाइज बताएंगे वो स्ट्रेंथनिंग के होंगे एंड कुछ एक्सरसाइज उनके लिए होंगे जिनके मसल्स काफी टाइट है, तो उनको वो रिलैक्स करना है. ओके, सो मसल्स एक्सरसाइजेज ये कस्टमाइज्ड होंगे. So first examination is you would do it whenever you're alone. आपको मिरर के सामने बैठना है. Otherwise just take the support. जमीन पे बैठ जाओ or you can sit on the bed. Take the support in front of the mirror. And what you will do is like this is the hole of the vagina. You will just insert these 2 fingers. Okay, insert them and then you squeeze these muscles. जो अभी हमने muscles को feel किया, बस उसी को squeeze करना है हमें. उस स्क्वीज करने में व्हाट आर योर फिंगर्स फीलिंग?
Okay. Is there any pressure on the fingers, or you can squeeze your fingers properly and your pelvic floor muscles be lift हो रहे कि नहीं? Whatever is your answer, just note it. Okay, and I'll send you one grading system. आप आपका आंसर उसके साथ रिलेट कर सकते हो. So इधर आपको कॉन्ट्रैक्शन समझ आएंगे या फिर नहीं समझ आएंगे या फिर थोड़ा बहुत आप फील कर पाते हो. Whatever your answer is, just note it down. Okay, so ये एक एग्जामिनेशन का टाइप हो गया. Okay, सभी समझ गए ना ये वाला एग्जामिनेशन? आप कभी भी कर सकते हो दिन में एक बार. Okay, the other one, the other examination is आपको ये वाला भी एक ही बार परफॉर्म करना है. एंड स्पेशली मॉर्निंग यूरिन के साथ आप परफॉर्म करोगे. तो मॉर्निंग की फर्स्ट यूरिन रहेगा, बस एक ही बार करना. मल्टीपल टाइम करने से आपको दिक्कत हो सकता है, तो इसको एक ही बार करना है. ओके, तो आप क्या करना, जब भी आप यूरिन करने जाओगे फर्स्ट मॉर्निंग की, just let it go and then suddenly you just try to contract and hold all the urine. Okay, so इसमें भी just notice what is happening. So even though you're trying your best कि आप उसको पूरा होल्ड करो, पर वो नहीं हो पा रहा है, ये बताएगा कि आपकी मसल्स वीक है. एट टाइम्स ऐसे हो सकता है कि आपका फ्लो ना थोड़ा सा कम हो जाए, थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर ही लेते हो. ओके, या फिर ऐसा हो सकता है कि ड्रिपिंग हो रहा है, यानी बस ड्रॉप गिर रहे पर वो फ्लो खत्म नहीं हो रहा है. सो एनीथिंग, वॉट एवर योर आंसर इज, अगेन नोट डाउन. So these were the two examinations. Okay, first just feel where your pelvic floor muscles are. Secondly, you can do this two examination and note down whatever your answer is. Okay, for both the things in the group we will be posting you some information and you can relate those things. Okay, so this will give you a good idea how your pelvic floor muscles are, whether they are tight or they are weak, because each symptom के लिए अलग exercise है. Okay, so now we just demonstrate a few exercises pelvic muscles के, which are very much basic exercise. Those with tight or weak, both of you can do, because उसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको. Okay, so what I want you people to do is, अभी अच्छे से बैठ जाओ विथ अच्छा से सपोर्ट वगैरह लेके, एंड हम एक पहला वाला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ओके, सो आपका जो मोबाइल रहेगा आप एक जगह पे रख सकते हो, सो दैट यू आर स्टेबल. ओके, सो फर्स्ट इज व्हाट यू हैव टू डू. आपको पहले इनहेल करना है, एंड जब एक्सहेल करोगे यानी ब्रीथ आउट करोगे, तभी जस्ट पेल्विक फ्लोर मसल्स को ऊपर पुल करना, यानी आप छोड़ने का समय एंड पुल करने का समय एक ही होगा. ओके, सो वी जस्ट ट्राई. ओके, जस्ट इनहेल, नाउ एक्सहेल करते वक्त पुल, एंड देन यू रिलीज. सो ब्रीथ इन करने में देयर इज नो मूवमेंट, बट व्हाइल ब्रीथिंग आउट आई एम स्क्वीजिंग. Okay, so everyone with me. Okay, sabhi jan, inhale and breathe out. Again, breathe in, breathe out, pulling your muscles up. Again, breathe in, breathe out, and pull your muscles up. One more time, breathe in, breathe out, and relax. सभी कर पाए इस एक्सरसाइज को? How many of you could do it? Okay, उसको आप फील कर पाए, able to pull, at least you can sense that thing, you're trying your best to pull it up. Okay, हाथ ऊपर आ रहे हैं. ओके, सभी ने किया. ओके, द अदर एक्सरसाइज लेट के है. तो ये वाला जो एक्सरसाइज हम लोग ने बैठ के किया, यू स्टार्ट परफॉर्मिंग दिस एक्सरसाइज स्लोली, so that you realize your muscles are, this is just activation actually, ये कोई strengthening नहीं है, nothing, this is just activating your pelvic floor muscles, जिसको हम कभी टच किए ही नहीं थे, उसको एक्सरसाइज भी करना है. Okay, the other exercise is by lying down, so I'll just show how to do and you can perform. If you're able to lie down, बहुत अच्छी बात है, आप लेट के मेरे साथ ही करिए एक्सरसाइज को. Hope you're able to see. You're able to see everyone? Yes. Yes, okay. तो आपको ऐसे लेटना है, नी को बेंड करते हुए, एंड बैक को प्रेस करना है नीचे.
सो मैं क्या करूँ, मेरा जो नेवल है अगेंस्ट स्पाइन प्रेस करूँ. ओके, दिस इज स्टेप 1. जस्ट प्रेस दिस पूरा बैक फ्लैट. इफ यू नॉट एबल टू प्रेस, आप हाथ को ऐसे पीछे रखना जहाँ पे वो स्पाइन का कर्व होता है कमर में नीचे, एंड जस्ट प्रेस योर हैंड. जस्ट प्रेस. सी टू इट कि आप आपके थाइस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करोगे. इट इज जस्ट दिस पार्ट विच इज वर्किंग टू प्रेस दी हैंड. बाकी सब रिलैक्स्ड. ओके, वंस यू एबल टू डू दिस, नाउ इसी के साथ आप आपके पेल्विक फ्लोर को भी स्क्वीज करना. सो व्हाट आई एम डूइंग इज, पहले बैक को प्रेस अकेले, नेवल को भी अंदर ले लिया. सेकेंडली, नाउ आई एम पुलिंग माय पेल्विक फ्लोर साथ में, एंड जस्ट होल्ड दिस, एंड डू नॉट होल्ड अ ब्रेथ. ब्रीदिंग करते रहना है, एंड देन यू रिलैक्स. ओके, so I'll just repeat again, pressing the back down with the navel, and then pelvic floor muscles को pull, squeeze करो अपने तरफ, and normal breathing, and you can hold it at least for 3 to 5 seconds, and then gradually release. So this is the second way to activate your pelvic floor muscle. I hope you're able वन to do. मिनट वन Yes, मिनट sure. हम जब एक्सेलेशन करेंगे तभी पेल्विक मसल को ऊपर खींचेंगे. करेक्ट करेक्ट, वही मैकेनिज्म है इसमें जो हम लोग ने बैठ के किया था, सेम मैकेनिज्म. ओके, थैंक यू. यस. ओके, तो ये एक एक्सरसाइज था. दिस वाज द सेकंड वन, जस्ट बैक को प्रेस करना. एंड द लास्ट वन, थर्ड है, जस्ट पेल्विक को टिल्ट करना है हमको. जस्ट कीप ऑन टिल्टिंग. दिस इज अगेन अ वे टू एक्टिवेट योर पेल्विक फ्लोर मसल्स. इसमें हमारे नॉर्मल रखा है, आई एम नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी. यू जस्ट इनकलकेट दिस टिल्टिंग मेथड. यू एबल टू सी द टिल्ट. एक बार बैक को फ्लैट करो, एंड देन आर्च बनाओ. ओके, सो ये स्टेप 1 हो गया. एंड इसमें जब आप वापस इसको प्रेस करोगे, देन अगेन उसको ये not able to understand. नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. ओके ओके, विल मेक इट सिंपल. यू कैन जस्ट डू द टिल्टिंग. टिल्टिंग यानी क्या, ये जो पेल्विक रीजन है ना, उसको सिर्फ नीचे करो ऐसे, एंड देन बैक को फ्लैट करो. ओके, मैं स्टैंडिंग में दिखाती हूँ हाउ इट विल लुक. सो इट विल लुक दिस वे. सो टिल्ट आगे पीछे, आगे पीछे. समझ आया? Now understood. हाँ, सो यही मैं लेट के कर रही थी. ओके, जस्ट ये हम चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं. चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो. इवन दैट इज ओके. ऑन द चेयर यू कैन सिट ऑन द एज, एंड ऑल्सो यू कैन डू टिल्टिंग. बट सी टू इट कि चेयर पे बैठ के क्या हो जाता है, एक तो वेट बेरिंग हो जाता है पाव पे. यू कैन, देयर आर चांसेस कि आप पाव का इस्तेमाल करो उसको स्टेबल रखने के लिए. तो अब लेट करने से क्या होगा, यू आर अवेयर कि ओनली माई पेल्विस इज गोइंग टू वर्क एंड नॉट माई लेग्स. बस यही डिफरेंस है. Okay, so these 3 exercises are very simple and basic one to activate your pelvic floor muscles. And इसमें क्या हो जाता है, आपका कोर भी एक्टिवेट हो जाता है. Okay, कोर भी एक्टिवेट हो जाता है इसी के साथ. ओके, सो अभी हमने देखा एग्जामिनेशन करना, और पहले तो जानना कि पेल्विक फ्लोर मसल्स कहाँ हैं. 2 एग्जामिनेशन देखे एंड 3 एक्सरसाइज देखे. ओके, किसी को और कुछ पूछना है? वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट योर कंसर्न्स? Welcome. Ma'am, if you are doing some basic exercises of core in gym, so is this needed? If suppose we are doing If you're doing squats basic and exercises of in gym, if gym, it's squats or so do we have to do this? yes, yes. Actually, gym injuries में क्या हो जाता है, whenever you're doing any exercise in the gym, there are chances of hurting pelvic floor more, because आपको अगर concentrate नहीं करोगे, then वो weak होता जाएगा आपका core, क्योंकि वो indirectly वो जो ball वाला thing was shown ना, that is what core करने चाहते हैं हम abdomen का, but indirectly वो hurt करेगा pelvic floor अगर वो strong नहीं रहे तो. So there are chances. So you have to be very alert रहना है कि किस तरह से करना है. Once everything is okay and then you're doing those sort of high intensity exercise, then it is okay. But before that, just check all these things. Because gym में क्या होता है, particularly core को माना जाता है, but pelvic floor को भूल जाते हैं. भूल जाते हैं, right? इसमें हम नहीं उस पे करते हैं. concentrate कर रहे हैं pelvic floor पे. Okay, Yes, understood. हाँ.
Yes. Thank you. Yeah. Anyone else want to ask anything? We give this videos for the exercise. You want the video for the exercise, the one I have shown you अभी के? Yeah. Yeah, sure, sir. We'll make it sure कि आपको ग्रुप में मिल जाएगा. Thank you very much, ma'am. Yes, thank you. Here I Madhura want ma'am, I have one more question. Mm-hmm. you can ask the question. I will add the point later. So, for what age groups these exercises are needed, Madhura ma'am? Do small For girls what also age have group? to do? Yeah, The exercises for the pelvic floor. yeah. या एक्चुअली इसके लिए आंसर ये है कि वंस हम जैसे हम लोग बचपन से अगर बताते हैं जैसे उन्होंने मेंस्ट्रुएशन पीरियड में आ गए तो उसी दौरान जो दिक्कतें होती है ना उसको प्रिवेंट करने के लिए भी ये एक्सरसाइज अप्लीकेबल होते हैं. Okay, so they can So do it is before. like- Suppose Yes, our yes, daughter yes, they they can do it can. before their menses have hit. Okay. हाँ, she can. At least it is like you are exercising for everything. Just add to exercise for a pelvic floor. ऐसा नहीं कि Okay, पूरा दिन रात बस pelvic floor करना है. बस हाँ, just Correct. add those things so that she is aware about this. Understood. Here I want to like to add one point. See, here just pelvic floor exercises are just add on to the core muscles. Because core muscle आपके pelvic floor, आपके tummy की muscle, आपके back and diaphragm सब मिला के core बनता है. तो मान लीजिए आपने सिर्फ pelvic floor को ही ध्यान दिया और दूसरे सब वीक पड़े हैं, so that won't help you much. And Rajni was asking about going gym. So the breathing has to be synchronized. The pelvic floor and your back, your tummy, all has to be synchronized when you are exercising. So Correct. So we have to understand separately about each muscles and how to activate that. And after activating all the muscles, we have to able to synchronize with the particular exercise. ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि जनरली हम लोग शॉर्ट में कट में मारते हैं, ये बता दो एक एक्सरसाइज मुझे बस. तो वो जैसे जिमनास्ट को देखा होगा आपने, यू नो दे आर पावरफुल. जो बैले डांसर हैं, जिमनास्ट हैं, तो उनका पेल्विक फ्लोर, उनका टमी, उनका बैक एकदम फ्लेक्सिबल एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ भी होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है. समटाइम इफ वी आर so much working on one muscle group, whether it's pelvic floor or tummy or back, बहुत ज्यादा हाइपर टोन हो जाता है उसमें और वो ओवर एक्टिवेट हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, एंड दैट आल्सो कॉज मोर पेन. तो जिम में खास कर ऐसा होता है. Right. Thank you, Amit sir. मधुरा मैम एक Yes, yes. क्वेश्चन है. हम योगिक प्रैक्टिस में जो हमारे अश्विनी मुद्रा और मूल बंध लगाते हैं, when we are pulling up our anus muscle को, जो पेरिनियम मसल को, वो हेल्प करता है क्या? यही है क्या पेल्विक मसल को? ये हाँ, वो एक्चुअली पेल्विक मसल का एक्सटेंशन ही है. So it definitely helps. एक्चुअली बंद, आई नो बहुत बंद से, तो डेफिनेटली वो हेल्प करेगा आपके पेल्विक फ्लोर मसल को स्ट्रेंथन करने में. बंद हेल्प खासकर हम आर्ट ऑफ लिविंग में जो लगाते हैं ना, मूल बंध लगाते हैं, मूल बंध, ध्यान बंध, एडवांस कोर्स किया है वही लगा पाएंगे. इसलिए डेफिनेटली इट हेल्प्स. बंद और उसका और भी एडेड इफेक्ट है बंद कि वो आपके मसल भी स्ट्रेंथन करेगा, एट द सेम टाइम एनर्जी लेवल भी बढ़ाता है आपके चक्रास को एक्टिवेट करने में. तो योगा का तो एडेड एडवांटेज है. यस. और हाँ, डायफ्राम को एक्टिवेट करना है, उसके लिए क्या करेंगे? आपने पेल्विक फ्लोर तो सीख लिया, थोड़ा बहुत आइडिया आया. एक्टिवेशन है, इसके बहुत सारे एक्सरसाइज है, तो 3 दिन के प्रोग्राम में ये सारे को हम कवर करने वाले हैं. वी आर जस्ट गिविंग यू ब्रीफ अबाउट ऑल दिस एक्सरसाइज. 2 घंटे में से 3 घंटे लगते हैं. अच्छा, डायफ्राम को कैसे करोगे आप? हम लोग कोरोना से गुजर के आए हैं, तो हमें ये पता रहना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक, इसका आंसर क्या है?
अपने रेस्पिरेटरी मसल्स भी कोर में आता है, तो हाउ टू एक्टिवेट दैट? एनीबॉडी हैव आंसर? आंसर है इसका? हाँ प्रीति भी कुछ बोल रही है। कैंडल ब्लोइंग कैंडल ब्लोइंग इससे तो टमी की मसल, ठीक। कैंडल ब्लोइंग में आप सांस लेके छोड़ रहे हैं, ये इससे ज्यादा एक्सेसरी मसल यूज होता है आपके टमी और एक्सेसरी मसल, मतलब ब्रीदिंग की एक्सेसरी मसल्स। बट हम अगर योगिक ब्रीदिंग करते हैं, यौगिक ब्रीदिंग पे आ रहा होगा, सो आपको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग सीखना होता है। उसका एक वीडियो है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग में ऐसा होता है, मान लीजिए मैं लेट्स डू इट, एक 2 मिनट लगेगा, इजी है। सो ऐसे आप बैठ जाइए एंड हाथ को अपने टमी के ऊपर रखिए, इस तरह से दो। यू हैव टू सिट इट इन अपराइट पोजीशन। हाथ को आप इस तरह से अपने दोनों टमी के ऊपर रखना है, सीधा बैठना है, शोल्डर रिलैक्स। और जब आप सांस लेंगे तो क्या करेंगे, एक बार पहले सुन लो। सांस लोगे तो आपको टमी ऊपर आना चाहिए, और सांस लेंगे तो स्क्वीज होना चाहिए, ठीक है। और इसको आपको डेलिब्रेट करना है, जितना आप कर सके उतना, मैक्सिमम, राइट। सो व्हेन यू ब्रीथ इन, टमी ऊपर आया, एंड देन होल्ड फॉर 2 सेकेंड, एंड देन ब्रीथ आउट। ब्रीथ आउट आप मुंह से इस तरह से छोड़ के करेंगे, एंड स्क्वीज इट। धीरे धीरे करो इसको 3-4 टाइम्स, जितना लंबा हो सके करो। ब्रीथ इन, तो जितना फुला सके उतना फुलाना है, and hold, and then purse your lips for breathing out. Just breathe in, जबरदस्ती बहुत नहीं करना है, ओनली आपका टमी इतना आ जाए उतना इनफ है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाए इनफ। तो कोरोना के टाइम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करना चाहिए, क्योंकि आपका ऑक्सीजनेशन भी बेटर होता है। होता क्या है, हमारा डायफ्राम ऐसे रहता है, तो जब आप सांस लेते हैं ऐसे, तो डायफ्राम ऐसे हो जाता है, उससे आपका जो पेल्विक कैविटी है, पेल्विक बोलो, ये लंग कैविटी है, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा आ जाता है। सो ऐसे सांस लेने से तो डायफ्राम ऐसे गया, तो आपका जो लंग है भर गया ऑक्सीजन। लेकिन आई थिंक 70% लोग अपना लंग कैपेसिटी यूज ही नहीं करते, ओनली 30% यूज करते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम करना भी इम्पोर्टेंट। इट्स गुड टू लर्न अबाउट योगिक ब्रीदिंग में हम ऐसे करते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरैसिक ब्रीदिंग, क्लैविकुलर ब्रीदिंग। वेरी गुड। तो दिस इज, हाँ, वही 3 स्टेज ऑफ प्राणायाम। ये जो आपके योगिक ब्रीदिंग बोल रहे हो, 3 स्टेज प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तीनों कहीं ना कहीं मिक्स हो जाते हैं, और इसको हम लोग क्लिनिकली यूज करते हैं हेल्थ इश्यूज को ठीक करने के लिए। और इस सब का डिटेल हमारे वो 3 दिन के प्रोग्राम में और डिटेल से। और इसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, फिर आपका पेल्विक फ्लोर मसल हो गया, और कमर के मसल की स्ट्रेंथनिंग वो बची हुई है। कमर की मसल, कैन यू टेल देम अबाउट द बैक प्रेस एंड डिड यू टेल देम बैक प्रेस and Yes, back press was aesthetic awareness? it included in that only. Included, right? Tilting जो हम लोग ने किया, टिल्टिंग किया, जो हमने टिल्टिंग किया वो बैक के मसल को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है, वो हो गया। अब टमी की मसल बची, अभी सिर्फ एक्टिवेशन है। इसका एक्टिवेशन के बाद लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 लेवल के स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम्स, वी आर जस्ट इन एक्टिवेशन। टमी के मसल को एक्टिवेट कैसे करेंगे, बैक प्रेस करके लेटिए, मतलब आप। तो हमने क्या क्या सीखा आज, पेल्विक फ्लोर मसल को कैसे एक्टिवेट करना है, उन्होंने बताया कैसे आपको क्लोजर करना है, उसका वीडियो आपको दे देंगे।
फिर मैंने diaphragmatic breathing बताया, that is to activate your diaphragm muscle, which respiratory muscle which comes in 4 group. ठीक है, आप कमर की मसल को एक्टिवेट करने के लिए हमने pelvic tilt किया। अभी हम टमी की मसल के लिए एब्डोमेन होलोइंग, मतलब उसको आप फॉलो करो, ब्रेस करो। ब्रेस मतलब फॉलो मतलब आपके बेली बटन को अंदर दबाओ बस, तो बैक प्रेस हो जाएगा। बैक ऐसे कर्वेचर रहता है, तो उसको प्रेस करना है, एंड प्रेस करते करते आपके बेली बटन को दबाना है, और दबाते हुए सांस नहीं रोकना है, सांस लेते रहना, सांस भी लेते रहना है और आपको दबाना है, दोनों काम एक साथ। तो यू आर डूइंग बैक प्रेस, पैर को मोड़ के रखना, और अपने पैर को नीचे दबाया, ये कमर लोअर बैक को, और पूरे कमर को ब्रेसिंग किया, कमर के मसल्स को ब्रेसिंग मतलब सारे मसल को एक साथ टाइट किया। जैसे मैंने एकदम टाइट करके रखा है, जैसे मतलब कोई ऐसे मतलब कमारेगा तो ना लगेगा, जैसे आप कमारेगा तो आप कैसे टाइट कर लेते हैं, उस तरह से आप टाइट करिए। वैसे टाइट करते हुए डोंट होल्ड योर ब्रेथ। ये ध्यान रखना कि आपको अपना सांस नहीं रोकना है, ठीक है। तो ये होल्ड करना है सर, श्वास को होल्ड करना है, मसल्स को होल्ड करना है, सांस को होल्ड नहीं करना। अच्छा सांस नॉर्मल लेना है। हाँ, इसमें बहुत थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अक्सर हम लोग सांस रोक के मसल को टाइट करते हैं, वो गलत है। तो बार बार प्रैक्टिस करिए उसका कि मैं बिना सांस रोके मसल को टाइट कर पाऊँ। ये थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, ये आसानी से नहीं होता है कि आपका सांस और आपका ये टमी की मसल का कंट्रैक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं, उसको अलग अलग रख। यदि आप सांस रोक के करोगे तो आपने क्या इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो बॉल में दिखाया था ना, हवा के प्रेशर से कर रहे होगा, मसल टाइट नहीं होता। जैसे ये है, हवा भर लिया मैंने, हवा से वो दिख रहा है कि वो टाइट, या हवा के प्रेशर से मसल टाइट, मतलब मसल का अंदर से कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसके लिए आप सांस को अलग से डिसोसिएट करिए। इन 3 days प्रोग्राम यू विल लर्न डिटेल हाउ टू डू, और उसके बहुत सारे लेवल्स हैं, ठीक है। सो अभी हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे फॉर्म में। इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो लेट्स कैन यू ओपन मधुरा, आपके है तो? या फिर आप लोग खुद ही पूछो क्या क्या था क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन था आप लोगों ने लिखा है, वो आप एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्विकली 10 मिनट्स में, उसका क्या आंसर है। जो जो लोगों ने, आप लोगों ने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है ना वो लिखे थे, उसकी बात है। हाँ पूछिए, आपको उसमें क्या क्या था, बोलिए पूछिए। सर मोस्टली हमें इसको खाली पेट करना होगा ना? हाँ, खासकर जो कोर मसल है खाली पेट करना चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आप, ये खाली पेट होना जरूरी है डेफिनेटली। ओके, मेनोपॉज के बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखा है। तो मेनोपॉज इज अ हार्मोनल इश्यूज, बहुत सारे उसमें ज्वाइंट ऑर्थेल्जिया होता है, ज्वाइंट में इम्बैलेंस होता है, मसल में इम्बैलेंस होता है, मूड स्विंग्स, ऑल दोस थिंग्स। तो देखा गया है कि एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है इस स्टेज में। एक्सरसाइज में कौन सा एक्सरसाइज होना चाहिए, वो एरोबिक होना चाहिए कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होनी चाहिए, कि क्या एक्सरसाइज करना है वो हम आपको बताते हैं, बट एक्सरसाइज थेरेपी हेल्प्स। तो मेनोपॉज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ जाए उसमें एक्सरसाइज, अब देखिए आप, मेनोपॉज का मतलब है कि एस्ट्रोजन का मात्रा कम हो गया, हार्मोनल चेंजेस आ गए, तो अब फिर हार्मोन थेरेपी थोड़ी शुरू कर दोगे, ड्रग्स थोड़ा लेने लगोगे, वो तो नेचुरल है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। उसके लिए आप अपने एक्सरसाइज से ही, डाइट से, लाइफस्टाइल चेंज से ही उसको आप ठीक कर सकते
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका जसमीत कौर जी का कि स्लिप डिस्क एंड वेरिकोज वेन। स्लिप डिस्क इसलिए होता है कि जैसे मैंने बताया कोर मसल है आपका, ये जो चारों तरफ जो मसल्स हैं टमी की, बैक की, पेल्विक फ्लोर एंड डायफ्राम का इम्बैलेंस होने से डिस्क में प्रेशर बढ़ जाता है। तो डिस्क में प्रेशर बढ़ने के कारण वहाँ बल्ज होने लगता है और नस को दबाने लगता है। तो जब आप ये सारी एक्सरसाइज करते हो तो डिस्क अपने जगह पे रहता है और 95% स्लिप डिस्क मैकेनिकल होता है। कोई भी ड्रग इस दर्द को इस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकती। दर्द को कुछ समय के लिए दवाइयां कम करती हैं, बट प्राइमरी इलाज स्लिप डिस्क का एक्सरसाइज थेरेपी है, लेटिस फिजियोथेरेपी। अभी वेरिकोज वेन क्या है कि वेरिकोज वेन में क्या होता है, आपके जो खून की नलियां होती हैं उसमें वो होते हैं ऐसे वॉल्स होते हैं, है ना। तो ये आप एक्सरसाइज ना करने से, देखो सब जगह एक्सरसाइज करोगे, यदि आपकी एक्सरसाइज नहीं करने से एक मिनट क्या लिखा, कैन यू शो एक्सरसाइज फॉर मी एंड आई हैव, कैन यू रीड द क्वेश्चन मधुरा प्लीज आफ्टरवर्ड्स, लेट मी फिनिश Yes. दिस वेरी। हाँ, you can finish then and read 2 questions. सो वेरिकोज वेन में क्या होता है, जो खून की नलियां होती हैं उसमें ऐसे होते हैं फ्लैप्स, जिसे हम वॉल्व्स कहते हैं, जिससे कि हमारा जो खून का जो प्रवाह होता है वो काफ से लेके हार्ट में होता है। और यदि हम एक्सरसाइज बराबर नहीं कर रहे, नहीं चल रहे हैं, नहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो खून की नली में दबाव बढ़ जाता है। और अभी क्या होगा, यदि वाटर का प्रेशर जो पानी के उसमें जो बलून है, मान लीजिए बलून को आप लोगों ने ऐसे उसमें पानी भर दिया और दोनों ऊपर से नीचे से दबाया, तो क्या होगा बलून का, क्या होगा बताओ बात कितनी हट जाएगा। हट जाएगा। तो यही मैकेनिज्म है वेरिकोज वेन का। तो वो उसी तरह से खून का जो प्रवाह, क्योंकि खून ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि आप एक्सरसाइज कर नहीं रहे हो, तो वहीं पर जमा हो गया खून, तो वो क्या होता है, खून की नली पतली हो जाती है, फूल जाती है। अब इसका कौन सा दवाई में इलाज होने वाला है भाई, तो आपके मसल्स को आपको एक्सरसाइज करेंगे तो वो स्ट्रांग बनेगी। क्या हो, जैसे मान लो ऐसे रहती है खून की नलियां के दीवार ऐसे रहती है, छोटे छोटे मसल होते हैं। अब इस मसल में अच्छा फॉर्मनेस है, स्ट्रांग है, तो ऐसे रहेगा। अब ये वीक हो गई तो क्या छिद्र आ जाएंगे और ये फैलते जाएगा। उसी तरह से आपका ये होता है डायस्टाई रेक्टाई, जो आप प्रेगनेंसी के बाद जो हमारी विमेन्स की टमी जो ऐसे फैल जाती है, तो उसका भी जो मसल्स ऐसे रहना चाहिए। अब इतना कमजोर हो जाता है कि वो बेबी पुश करते हैं तो ऐसे फैल जाता है, तो कभी कभी बहुत ज्यादा फैल जाता है, तो वो बहुत कमजोर हो जाता है। उसका कोई दवाई नहीं, एक्सरसाइज ही करके उसको धीरे 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 टोन अप करके ऐसे करना। तो ये सिंपल मैकेनिज्म, बट बहुत सारा मैकेनिज्म है एक्सरसाइज का कि तो सही जगह पे उसका प्रेशर करना जरूरी, नहीं तो लोग सांस रोक रोक के एक्सरसाइज करके वो और बिगड़ जाते हैं। ठीक है, सो ये था वेरिकोज में। सो मेनोपॉज में जो वुमेन है उनके लिए कस्टमाइज प्रोग्राम एक्सरसाइज का बहुत जरूरी है, कुछ भी एक्सरसाइज करना नहीं है। Now next I just question है, take the question from here, sir, yeah, please. from the chat. So Rajni ji has written, can girls with weight issues who have not hit their menses yet can join this program? Who have not Attended, मतलब उनको menses start नहीं हुए हैं of and course they they should, have weight issues also. हाँ. yeah, so that they can understand how to strengthen their pelvic muscles, how to take care of their muscles or their health of their pelvis region when they start menstruation. डेफिनेटली ये तो स्कूल का सब्जेक्ट है, हर स्कूल में होना चाहिए, राइट। Yeah, the second one is, can you show exercises for knees? I have pain while folding and sitting down in the knees. So while folding and sitting is giving the knee pain. वो एग्जामिन करना पड़ेगा कि पेन क्यों हो रहा है। कोई भी जनरल एक्सरसाइज करना, आपको फ्री कंसल्टेशन है, आप हमें हम आपको उसमें बता देंगे, ठीक है, तो आप हमें कॉल कर सकते। नेक्स्ट, How to control sugar in pregnancy?
शुगर इन प्रेगनेंसी, देखिए ये शुगर क्या है, मेटाबॉलिक इशू है। अगेन मेटाबॉलिक इशू क्या होता है, इम्बैलेंस इन बॉडी, एक लाइन में यदि सुनना है, इम्बैलेंस इन मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन मेटाबॉलिज्म। अब गैस्ट्रेशनल डायबिटीज होता है ये, इसमें क्या नाम है, प्रेगनेंसी में, तो नेचुरल है। हाँ सब मेरे देने के नेचुरल मतलब फिजियोलॉजिकल, काय मतलब क्या होता है कि शरीर में डिमांड जो होती है बेबी के कारण शरीर, तो वो इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ऊपर नीचे चीजें हो जाती है। मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। तो उसके लिए कैसे कम करें, उसका एक आंसर नहीं है। सबसे पहले आपको फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा बिफोर कंसेप्शन। यदि प्रेगनेंसी प्लान करिए पहले, आप प्री प्रेगनेंसी फिटनेस प्रोग्राम हमसे सीखिए, आपके गायनेक से सलाह लीजिए कि हार्मोनल इम्बैलेंस है तो नहीं, उसको रेक्टिफाई करिए। सी योर मेटाबॉलिज्म, योर लाइफस्टाइल, योर डाइट स्टाइल, उसमें सुधार करिए, तो ओवरऑल हेल्थ ठीक होगा तो आपका डायबिटीज या उसको रोक सकते हैं। तो ये कोई एक चीज नहीं है कि मैंने डायबिटीज की दवा ले ली है ठीक हो गया। डायबिटीज ठीक नहीं होता एक बार होने के बाद में यदि हो जाता है। तो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज फिजियोलॉजिकल नॉर्मल है, बट बहुत ज्यादा यदि आपका कमजोर है बॉडी पहले से ही, तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे। और कभी कभी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है कि आपकी जिंदगी में उसका काफी इम्पैक्ट है। योर बेबी विल गेट अफेक्टेड, your life will be drastically changed after pregnancy. I mean, I know how risky this is to go with lack of fitness for pregnancy, because I have my daughter. I have accompanied my wife during the phase of pregnancy, whole 9 months, and even during the delivery. I understand what I'm talking about. It's very very crucial. ये जिंदगी का सवाल होता है, तो इसलिए आप प्रेगनेंसी प्लान करके ही जाएं। ऐसा कुछ भी थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाएं। तो डायबिटीज कम करना है, वो सब कम करना है, ओवरऑल प्लानिंग करके जाएं। ठीक है, यू शुड टेक प्रीनेटल क्लासेस, यू शुड एडवाइस, यू शुड टेक एडवाइस फ्रॉम योर गायनेक, योर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, एंड योर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए अपने खान पान का भी ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट। Average age for the menopause to start. आप बताइए। This actually keeps on changing, but average is 55 to 60. But because of the lifestyle changes, इसका age जो है ना काफी नीचे गिरता आ रहा है। So उसमें हाँ, so that's what I'm telling you. It keeps on changing. So 55-60 is the average thing, and उसको जो जानना हो कि मेरे पास आया कि नहीं, जैसे मैंने कहा था कि 12 मंथ्स का नो मेंसेस वाला जोन आ जाना चाहिए। ये एक डिजेनरेटिव चेंजेस की तरह है, जैसे बाल पकना और जॉइंट का घिसना, उसी तरह से मेनोपॉज का आना, वो एग्जैक्ट नहीं होता है, वो आपके हेल्थ के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। बट उसमें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसको आप ठीक सही से समझ के लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स आप अवेयर रहेंगे तो अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, के बाद क्या है, नेक्स्ट है क्या? That's it in the chat. ओके, नाउ पल्लवी जी पूछती हैं अबाउट फ्रॉम अहमदाबाद, हाई ब्लड प्रेशर एंड थायराइड। यदि थायराइड एंड हाई ब्लड, थायराइड इज अगेन योर खाने का टाइम टेबल बहुत जरूरी होता है। थायराइड इज रिलेटेड टू योर थायराइड हार्मोन। खाने का टाइम टेबल बहुत जरूरी है, और आपके ड्रग्स लेते रहें। आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से एक सलाह जरूर लें, अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। कुछ भी डॉक्टर से दवाई कुछ भी लेने से ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर, आपको दवाई नहीं छोड़नी चाहिए, और एक्सरसाइज, ये सारे प्रॉब्लम्स को लाइफस्टाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम में हम बीपी और थायराइड को मैनेज करने के लिए कौन सा योगा करना है, कौन सा एक्सरसाइज करना है, कौन सी लाइफस्टाइल एक्वायर करनी है, कब सही डॉक्टर से सलाह लेनी, किस समय मेडिटेशन करनी चाहिए, कौन सा मेडिटेशन करें, कौन सा बंधा लगाएं, कौन सा प्राणायाम करें, ये सब बताने वाले हैं हम हमारे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम में। वो आप ज्वाइन कर लें, राइट। दूसरा क्वेश्चन है सुप्रिया जी का कि एसिडिटी एंड IBS, गैस्ट्रिक रिलेटेड इशू।
ये यदि जनरली है या प्रेगनेंसी विमेन हेल्थ से रिलेटेड पूछ रहे हैं, दैट आई डोंट नो। तो एसिडिटी अगेन टाइम टेबल, दिनचर्या, योगा में बोला गया है ना, दिनचर्या, सही टाइम पे खाना और सही टाइम पे सोना, ये इससे बड़ा दवाई कुछ नहीं। और सही एक्सरसाइज करना, तो इस एसिडिटी। और हाँ, बीच बीच में फास्टिंग करिए, फ्रूट्स पे रहिए, फ्लूइड में रहिए, एक महीने हफ्ते में एक बार फास्ट करो, या क्या बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंट फास्ट बोलते हैं, इनफ्रीक्वेंट फास्ट बोलते हैं, इंटरवल फास्ट, कुछ मतलब 12 घंटे में खाओ या 16 घंटे में खाओ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आपके लिए क्या करता है काम, वो देखना पड़ेगा एग्जामिन करके, वो आप हमें बाद में पूछ सकते हैं। Migraine is also related with lot of issues related to hormones and stress. So आपका ओवरऑल हेल्थ ठीक रहेगा, माइग्रेन ठीक रहेगी, है ना। और उसके कुछ एक्सरसाइज भी होते हैं स्पेसिफिक, वो आप हमें सीख सकते हैं प्री कंसल्टेशन। ओबेसिटी के लिए मैंने अभी जो कुछ पॉइंट बोले, रेगुलर एक्सरसाइज, वेजिटेबल डाइट ज्यादा लीजिए, वेजिटेबल ज्यादा लीजिए, कुछ टिप्स बस दे रहा हूँ, बाकी आप बाद में हमें मिल सकते हैं। और बीच बीच में फास्ट करिए, डेफिनेटली उस प्रोसेस फूड से दूर रहिए। ये सब चीजें हमें पता है, बट आपको कोच चाहिए तो हम हैं आपकी मदद करने के लिए। योगा ट्रेनर फ्रॉम द डायबिटीज है, डायबिटीज के लिए एक प्रोग्राम ला रहे हैं हम, स्पेशली जो जनरल डायबिटीज के लिए एक्सरसाइज प्रोग्राम, डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम, ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम पे। वीक मसल एंड डेफिशिएंट इन विटामिन, विटामिन की कमी, तो विटामिन खाओ, बैलेंस डाइट, इंडियन डाइट खाओ। वीक मसल है तो एक्सरसाइज करो। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यू वांट टू टॉक अबाउट मधुरा? Yes, for the urine incontinence, first तो हम एग्जामिन करेंगे जैसे पहले बताए गए हैं, and there are specific exercise. So in the consultation हम उसको और in depth जानेंगे, उसका main root cause क्या है, and accordingly we can plan the program for you. Excuse me, sir. Mhm. Is it safe that ki after the menopause only women are having a different health issues? Is it true? वो ज्यादा होता है, ये सही है, क्योंकि थोड़ा सा वो लाइफ लॉन्ग जिसे आप प्यूबर्टी के समय वो हार्मोन का जो एक्सपोजर होता है वो डायरेक्टली 55 के आसपास, 50 के आसपास वो चेंज होता है। तो इतने सालों से आपका हार्मोन लेवल एक था, वो फिर चेंज होना, तो शरीर को असर पड़ता है। तो डेफिनेटली मेनोपॉज के बाद चीजें स्टार्ट होती हैं, बट ये कोई जरूरी नहीं है। इफ यू आर हेल्दी एंड फिट पहले से, तो ये आप आराम से उसको यू कैन एंजॉय दैट हेल्दी लाइफस्टाइल, नॉट एन इशू। ऐसा Thank कुछ you, sir. जरूरी नहीं कि आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा, ऐसा वो कोई बीमारी नहीं है मेनोपॉज। Right, right. Previously, I was not having any health issue, but nowadays, sudden climate change also affects my health. That's why I इम्यूनिटी was कम little हो bit जाता है, concerned. इम्यूनिटी कम हो जाता है, तो आपको क्या करना है, आपके लाइफस्टाइल को बेटर कर देना है। Okay. कभी भी जब हमारा इम्यूनिटी कम होता है तो एक्सरसाइज से इम्यूनिटी बढ़ती है। खान Okay. पान, दो चीज याद रखिए, हर चीज में वही आ रहा है, सही डाइट और सही एक्सरसाइज, ये बहुत बड़ा लाइफस्टाइल चेंज है। एंड टाइमली करना, बस, और उस सब का रेसिपी है, ठीक है। एंड देन फ्रोजन शोल्डर, somebody is written, फ्रोजन शोल्डर के Yes, लिए sir. आप फिजियोथेरेपी लेनी जरूरी है फ्रोजन शोल्डर के लिए, या तो आप एक्सरसाइज करके, हो सकता है तो बढ़िया आप करिए। थायराइड प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली जो मैंने बता दिया अभी, स्पॉन्डिलाइसिस, फिशर्स, फिशर्स की बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज के कारण होता है, उस सबको हैंडल करना, आपको कंसल्ट करना होगा उसके लिए। स्पॉन्डिलाइसिस अगेन 90% स्पॉन्डिलाइसिस फिजियोथेरेपी से जाता है। सियाटिका, sciatica is again compression of the nerves due to the bulging of the disc, which is caused by the compression of the disc, जो कि
आपके अलाइनमेंट के इशू के कारण या मसल वीकनेस के कारण हो रहा है बैक के, मसल वीकनेस बैक के ही नहीं, पेल्विक फ्लोर के मसल से भी हो सकता है वीक है, कमी निकला हुआ है वीक, उससे भी हो सकता है आपका सियाटिक। इन सबको बैलेंस करेंगे तो आपको बार बार नहीं होगा। आप दवा खा के या आप रेस्ट लेके, ज्यादातर लोग बोलते हैं 15, डॉक्टर लोग बोलते हैं 15 दिन रेस्ट ले लो, बेल्ट पहन लो, उससे सिर्फ वो कुछ समय के लिए रुक जाएगा, बट फिर से हो सकता है। यदि आपको उसको परमानेंटली ठीक करना है तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, बोन के हेल्थ के लिए भी आपको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करना चाहिए। स्ट्रेंथ, जिम में जाते हैं, गुड एक्सरसाइज है, बट जिम में भी आप जा रहे हैं तो उसमें गलत सही का भी आपको एक सुपरवाइजर आपका होना चाहिए, आप सलाह लेके कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी 2 years ऑफ बैक, ठीक है। सो यूट्राइन फाइब्रॉइड का भी बहुत रीजन है, जेनेटिक हो सकता है, हार्मोनल हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से हो सकता है, और स्ट्रेस से भी होता है। तो ये आप यदि फाइब्रॉइड है तो उसको चेकअप करवाइए। फाइब्रॉइड के साथ कंसीव नहीं करना है, उससे और कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। और फाइब्रॉइड है मतलब उससे हो सकता है आपका हेल्थ ओवरऑल खराब है, इसलिए है। तो आप अपना पूरा चेकअप कराइए, देन यू कैन टेक द प्रॉपर ट्रीटमेंट। नाउ अभी ये जो मैंने बताया थी हमारे ट्रीटमेंट प्रोग्राम, उसको एक बार स्लाइड को फिर से वो करता हूँ, तो यू कैन जस्ट सी। उसमें आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ये जो पेल्विक हेल्थ प्रोग्राम है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नॉर्मल 8,000 रुपीज़ है, बट आज के लिए हमने 1,000 रुपीज़ रखा है। इसमें हम बहुत सारे आपको वीडियो, इसका आई थिंक शॉर्ट रिकैप, आपको वो जो टेस्टिमनी है ना, जो आपको टेस्टिमोनियल जो है वीडियोस हैं जो आपको भेजे गए थे, वो उन्हीं लोगों के हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम अटेंड किया था लास्ट ईयर इन, हम लोगों ने किया। तो विमेन पेल्विक हेल्थ वर्कशॉप, इसमें और डीप में जाके सारे एक्सरसाइज को हम करके वीडियो भी देते हैं और एग्जामिनेशन। तो अभी मधुरा मैडम आपको एक भेज से आप अपना करना पेल्विक फ्लोर का, और उसके बाद क्या करना है, कंसल्टेशन बाकी आपको करना है। इसके मैंने बताया था 15 डेज, 7 डेज, 30 डेज, 60 डेज का अलग अलग प्रोग्राम डिपेंडिंग ऑन योर नीड। तो ये आप प्रोग्राम ले सकते, ठीक है। तो दिस वाज इट। और कोई क्वेश्चन बचा है तो आप पूछ सकते हैं। और हाँ, एक और चीज, आई विल सेंड यू अ फीडबैक फॉर्म और रिव्यू फॉर्म, जिसको आप भर दीजिएगा, ग्रुप में हम भेज। और कुछ पूछना है आपको? We have 2 minutes. और सिर्फ कोई एक फीडबैक दीजिए यहाँ पे, वीडियो फीडबैक। हाउ वाज इट? सी, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया है 2 घंटे में। ये सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट, और आप लोग को कैसे लगा, और कौन कौन ज्वाइन करना चाहता है प्रोग्राम, वो भी आप लिख के भेज सकते हैं। Okay, any other question? अरे कुछ तो बोली प्रीति थी। Don't think so. सो गए क्या? रेशमा जी, तुषार बालाजी, रितु जी, रितु छाबड़ा, निशा जी, just share a few lines before we wind up. How did you like? What is your suggestions, feedback, video? बाकी तो आप फॉर्म भर दो।
रेशमा जी बोलिए, आप मुस्कुरा रही हैं वो. You can unmute yours. Yes, so for me, this was definitely a very informative session. I had not even seen the message carefully on that group. I saw it on a group. तो last minute देखा तो मैंने let me just see कैसे होते हैं ऐसे sessions. I've never ever attended any women related sessions, as I say, because I think there's not much awareness and nobody speaks about this. Yeah, that's what Nobody at all. वो आप जो टेस्टिमोनियल वीडियो है ना, वो लोगों के आंख से आंसू आ रहे हैं. क्यों? मैंने कहा इतना इमोशन क्यों हो रहा है? बोले सर, आज तक हम लेडीज एक दूसरे से बात नहीं कर पाते घर के अंदर इन सब चीजों के बारे में. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम्स इन द सेशन. सो 3 डे प्रोग्राम था वो. एंड lot of things, my younger sisters, she was not knowing that what do we do, and she was suffering. So when last year we announced this program, तो बोले भैया ये women's health program क्या है, because women word आया था. Then she joined us. So join कर, you'll understand what it is. And she had post pregnancy related issues because her surgery. So उसके बाद सी तब भी अब पूछ के ही करती है एक्सरसाइज. उसके बाद उसको पता नहीं था हम क्या करते. एंड सी सो हैप्पी आफ्टर दैट. उनको काफी कुछ उससे पोस्ट सर्जरी उनके बाद उसका थेरेपी हुआ ही नहीं था. रिहैब किसी ने बताया नहीं था. डॉक्टर बताए थे ही नहीं. तो इतना बड़ा इंफॉर्मेशन अपने अपने भी लोग नहीं बताते एक दूसरे को. सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोग I have come forward to talk about this. So you also talk about this program to your people, your friends, your family members. और जो 3 दिन का प्रोग्राम है उसको अच्छे से करिए. ये तो प्री प्रोग्राम में इंट्रोडक्शन ही हुआ और हम लेते रहेंगे. बट लोगों को भेजिए आगे आने वाले प्रोग्राम्स के लिए. थैंक यू. बिकॉज होता क्या है ना, अभी क्या है, बहुत टेक्निकल, जैसे बड़े बड़े डॉक्टर्स बड़ी बड़ी बातें हो जाती. ये बहुत बड़े फेमस डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट, कुछ फर्क नहीं पड़ता यदि आपका हेल्थ, आपका फिटनेस कम है. मेरी वाइफ को ड्यूरिंग डिलीवरी आई टुक कंसल्टेशन फ्रॉम 5 बिग डॉक्टर्स इन दिस एरिया एंड ऑल गिव मी द सर्जरी एडवाइस किया. वी डिडंट बिलीव एंड हम उनको लाइफस्टाइल चेंज या कुछ, हमने काफी सारे फिटनेस सेशंस उनके साथ किए. तो हमें रिजल्ट मिला उसमें. और जो उन्होंने 5 डॉक्टर, जो बड़े सिटी के 5 डॉक्टर, सब गलत साबित हुए. हाँ, एक ही डॉक्टर सही साबित हुआ जो इन सब चीजों पे बिलीव करता था कि फिटनेस एंड हेल्थ, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. तो कभी कभी हम लोग ये मिस कर देते हैं बेसिक चीज. So that's why we have to be aware that what need to be done at the right time. Okay. Anyone else? Radhika ji. Supriya ji, Mamta Mishra, Nisha Sharma ji, Dr. Pradnya. Yes. Yeah, please. Boli. How did you like? You have come first time, no, in this program. So, Dr. Pradnya. Yes, definitely. See, I knew things about women's health. As being a therapist, that is basic knowledge I had. बट जो स्पेशलाइजेशन जैसे डॉक्टर मधुरा ने उसमें मास्टर्स किया है, मुझे बीइंग अ थेरेपिस्ट बहुत सारी नई चीजें आज सीखने को मिली. आई वाज अ गुड लिसनर ड्यूरिंग एंटायर कोर्स of this session and I really learned new things being a therapist, definitely. So yes, I think this course ahead, जो डॉक्टर मधुरा ने अभी 3 एक्सरसाइज जो भी बताई है, it's really helpful for people to, needful for people to understand. वो दिखने में भले ही easy हो, बट पसीने निकल जाते हैं जब एक्चुअल में आप करते हो और समझते हो. सो आई थिंक जो भी अभी है यहाँ पे, दे मस्ट लर्न एंड उन्होंने लोगों को भी बताना चाहिए, बिकॉज इस चीज के बारे में
मैं खुद बता रही हूँ, मेरे पेरेंट्स, मेरे जो फीमेल फ्रेंड्स है उनमें आई एम एन एथलीट बाय माई सेल्फ, बट बहुत कम लोगों को इस चीजों के बारे में पता है कि ऐसे भी कोई चीज होती है। तो जो भी अभी प्रेजेंट है, मैं सबको सजेस्ट करूंगी, प्लीज स्प्रेड द वर्ड अबाउट दिस। किसी ना किसी मायने में फीमेल शुड हेल्प अदर फीमेल, सो प्लीज डू दैट। थैंक यू। यस। ठीक है। Okay, everybody is writing. Thank you for such wonderful session. Being a mother of 2 daughters, this is what I was much waited for. also take the advantage, further advantage. Take सारे free session हमसे लीजिए, हमको कॉल करिए। नंबर जो दिए हैं ग्रुप में, वो जो सारे एडमिन हैं उनको कॉल कर सकते हो। 4-5 एडमिन हैं उसमें नंबर, उनको आप कॉल करो या तो मैसेज करो, या मुझे वो जो नंबर है एडमिन उसमें मैसेज करिए कि आई वांट टू अवेल द फ्री कंसल्टेशन, देन वी कैन फिक्स अप द टाइम, राइट? थैंक यू। Okay. Yes, I'm not on the WhatsApp group because maybe I joined little late. So रेशमा जी, We'll note it what down. the number? मेरा नंबर है आपके क्लिनिक का 9819। टेक डाउन द नंबर Write in the chat. 98285842। हाँ, I'm writing। ये नंबर पे आप व्हाट्सएप करो, आपको ऐड कर लेंगे। Okay. ग्रुप बहुत इम्पोर्टेंट है, ग्रुप छोड़ना नहीं है। आगे आपको उसमें असेसमेंट शीट भेज रहे हैं और बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं, तो आप लोग जुड़े रहिए। ओके, सिप्रा जी, यू आर हियर, हाउ आर यू? सिप्रा जी, कुछ बोलना है आपको? चलो ठीक है, आई थिंक सब सो गए हैं। ओके सर, ये स्पाइन केयर जो कोर्स हमने किया था उसमें एक ग्रुप है ना, वो ग्रुप में आपका नंबर है ना? स्पाइन केयर में है, बट विमेन्स हेल्थ का अलग से ग्रुप है। यदि नहीं है, आपको नहीं हो ग्रुप में, तो ये नंबर पे ना मिस कॉल मैसेज को कि आई वांट टू ज्वाइन द ग्रुप। जस्ट हाय भेजो, ममता मिश्रा ना एंड रेशमा जी, ठीक है? आई विल ज्वाइन, राइट? ठीक है दिव्या। सर मुझे हाँ बोलिए बोलिए। मुझे वो मोनोपॉज के बारे में थोड़ा बात करना था, क्योंकि मेरा जो बीपी भी हाई हो जाता है और जैसे पसीना पसीना पूरा गर्मी होके लगता है, जैसे ऐसे होता है। तो बीच में काफी बीपी हाई हो गया था, तो मैंने डॉक्टर के पास गया तो तुरंत वो मेडिसिन भी दी, तो मेडिसिन लिया, थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन वो मेडिसिन हमको कंटिन्यू करना है ना? आप एक काम करिए, सारा रिपोर्ट लेके व्हाट्सएप करिए और हमें दिखाइए, अलग से आप कंसल्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, चेक करके आपको एडवाइस करेंगे। हाँ, कोलेस्ट्रॉल भी उस टाइम मेरे हाई हो गया था, कोलेस्ट्रॉल भी हाई था तो बीपी भी हाई हो गया, और पीरियड्स भी 3-4 मंथ नहीं हुआ है। तो मैं सोची कि ये मोनोपॉज के लिए ऐसे हो रहा है, बीच में और एक बार भी ऐसे हुआ था। या आप रिपोर्ट सेंड करिए एंड देन वी कैन मीट अप ऑनलाइन और ऑफलाइन, राइट? थैंक यू। प्रीति जी, प्रीति मुंडा, दिव्या, दिव्या कोटक, डॉक्टर दिव्या कोटक। चलो लगता है सब ऑलरेडी 4 बजे एकता शर्मा, माधवी, सिप्रा जी और शोभा रानी जी। ओके, आपका नाम बोल दिया मैंने। मीनाक्षी शर्मा जी, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank तुषार वाला दीदी ने हमको ये ग्रुप में सेंड किया था, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। मेरा भी थोड़ा प्रॉब्लम है कहीं के। तो थैंक यू बोलना। थैंक यू सबको। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कहाँ रहती हैं ममता जी? मैं भवानीपटना कलाहंडी में रहती हूँ। एक बार आपका ही वो जो स्पाइन केयर का कोर्स था मैंने किया था, लेकिन उसी ग्रुप में कुछ आया नहीं था। हमारा जो तुषार वाला दीदी का ग्रुप में मैं हूँ, तो उसी में आया था, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। हमारा स्पाइन केयर फिर से आ रहा है। स्पाइन केयर का मैंने कोर्स किया था,
ठीक ठीक है, अभी भी और भी 2-3 इंटरेस्टेड है, मैं उनको नेक्स्ट टाइम में उनको कोर्स के लिए हाँ जरूर। ठीक। थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाय बाय। थैंक यू एवरीवन। वाइंडिंग अप। बाय। Bye bye.